नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKV और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं इस वक्त हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो प्रदीप जी आज आदरणीय सामान्य एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, साथ में उनके दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार दोनों शिरडी, तीनों के तीनों शिरडी गए साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। साईं बाबा का आशीर्वाद भी लिया। वैसे भी साईं बाबा का दिन है, गुरुवार है, तो मतलब आपको क्या लगता है क्या आवश्यकता पड़ गई सर? मोदी साहब मोदी जी खुद बोले कि आई एम गोइंग टू बी द थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर of this country. Yes. And Amit Shah said it one day before that. And 45 out of 48 seats is a target set for Maharashtra. 45 out of 48. And That's right. to get 45, आपको you want the divine guidance and the divine help. That's right. If you don't have the divine help, Yes. because न शरद पवार मान रहा है न उद्धव ठाकरे मान रहा है एंड अगर वो नहीं आते तो 17% एनसीपी के वोट और 16% उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी के वोट वो इस तरफ नहीं आने वाला है। और 17 + 16 इज अ बिग, अराउंड 33% वोट्स मिनिमम। इट्स अ बिग मार्जिन and it is absolutely essential to see that BJP, if BJP wants 45 and तब तक वो नहीं हो रहा है और बार बार अजित पवार शरद पवार जी से मिल रहे हैं उनको ल्योर करने, वो लेकिन या तो संन्यास ले लिए, आप रिटायरमेंट लीजिए या सुप्रिया जी को बना दीजिए मंत्री दिल्ली में, नहीं तो आप ही बन जाइए सीनियर, आप ही बन जाइए। because I think BJP is very clear that Ajit Pawar, I think one of the part of the deal was Sharad Pawar will be there. Sharad Pawar should be there. But looking at लेकिन आज जो भीड़ में शरद पवार जी ने बोला है उससे तो फिलहाल तो लगता नहीं है कि शरद पवार साहब कुछ भी कर सकते हैं प्रदीप जी, लेकिन लगता नहीं है कि वो इस तरफ He's not giving up. The spirit within him is not dying at this ripe age. He says, I am still a fit पहलवान। इनफैक्ट मीडिया वालों को पूछ रहे थे किसी को कुश्ती लड़ना है तो बोलिए, मैं लड़के दिखाऊं आपको। तो बाय हार्ट एंड सोल ही इज रेडी फॉर अ फाइट and he's fighting. I don't think anybody in the media will risk taking on Sharad Pawar. Yes, he might just lose a life and limb both. In fact, when the media asked him how many MLAs you have got with you, बोले कि I don't have any MLAs, शून्य, 0. So he is not bothered about these things. जिसने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, for him this is just another battle. And he says, I don't have anybody with me. चलिए आप वहाँ से शुरू कीजिए. I don't have anybody with me. That's right. Mine MLAs with me is 0. लेकिन जहाँ तक शरद पवार जी का सवाल है, शरद पवार जी is a very realistic man. He knows his playing field is Maharashtra. Let's be very clear. And in Maharashtra, he is a master. He knows what are the moves that he has to make. And they all thought that he would give up. He has not given up. He's pulled a fast one on them. First by calling a meeting and putting a resignation. National President of the Rashtravadi putting his resignation without informing anybody, a surprise resignation, and then he knew what was the outcome. Everybody rallied with him. Yes. And he stumped Mr. Ajit Pawar and the entire company. You saw Ajit Pawar, at last begging for a post. Konte hi post wala diya. Give me some post in Maharashtra. I don't want to be the opposition leader. I mean, he knows it, but this is the first time, as we discussed, sir, he doesn't have the center with him, nor the state with him. So this is the challenge for him. But the only thing is that as far as he is concerned, within Maharashtra, within a certain area of Maharashtra, he commands a lot of support, and that there is no doubt. But Fadnavis says, 4 districts of party. That is 4 districts of Western Maharashtra. That is where Mr. Fadnavis believes that Sharad Pawar and his entire party exist. I hope these words don't come back to haunt Mr. Fadnavis. We've got our old friend, Mr. Ajit Chavan with us. Ajit Chavan साहब नमस्कार। सर नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। क्या जबरदस्त लग रहे हैं सर। Look at that lovely check shirt, and look at that lovely chair behind him. Really and truly lovely, wonderful. He's just come from a Marathi picture shoot.
That's right. That's right. Where he plays the hero. Yes. Absolutely. आज की तारीख में जो आज के हीरो हैं मराठी फिल्म्स के, वो फेल हो जाएं अजीत चौहान साहब के सामने, जबरदस्त है। अजीत चौहान साहब आज आदरणीय सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब, साथ में देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार, तीनों साईं बाबा का दर्शन करने के लिए गए शिरडी। क्या जरूरत पड़ गई सर? जरा बताएं, जरा इसको विस्तार से समझाएं, क्यों जाना पड़ गया? अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन फिर भी। सर, जब भी आपके शो में आता हूँ तो अगले कुछ दिन बड़ा ही अच्छा महसूस करता हूँ। आपके शब्दों की वजह से एक आत्मविश्वास प्राप्त होता है और उसके लिए मैं आपका, प्रदीप सर का, दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, हम शिरडी के परिसर में रहने वाले लोग हैं जी और हमेशा जी साईं बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है, ये मानने वाले हम लोग। जी बाबा जब शिरडी आए थे, उसके बाद से हमारे परिसर को बाबा का एक जबरदस्त आशीर्वाद है, ये हम मानते हैं। और जब भी साईं भक्त जो अपने आप को मानता है, उसको समय मिले, वक्त मिले और बाबा का बुलावा आ जाए, तो वो शिरडी में आता ही है। और शिरडी में महाराष्ट्र की ये मजबूत त्रिमूर्ति क्यों गई थी, वो तो आप पर्दे पे दिखा ही रहे हो। जी। साईं बाबा के आशीर्वाद से इन तीनों के नेतृत्व में महाराष्ट्र जो काम कर रहा है, और खास करके शिरडी और परिसर में हमारे नेता है राधाकृष्ण विखे पाटिल जी। जी सर, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। साईं बाबा के आशीर्वाद से प्रवरा नगर, शिरडी और आसपास का परिसर जो है, देश की पहली सहकार तत्व पर, यानी किसानों ने साथ में आकर के शुगर मिल जो थी, गन्ना फैक्ट्री, वो प्रवरा नगर में लगाई थी, एशिया की पहली। और तब से ये पूरा परिसर अपने आप में एक मॉडल है कि किसान अगर साथ में आ जाए तो किस तरीके से अच्छी तरीके से प्रगति कर सकते हैं, आर्थिक संपन्नता पा सकते हैं। जी प्राकृतिक विचारों के लोग साईं बाबा के आशीर्वाद से यहाँ रहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय विश्व गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जो मिशन महाविजय 2024 की घोषणा हमने की है, उसमें साईं बाबा हमें, हमारे साथियों को ऐसा यश देंगे कि फिर से बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आदरणीय मोदी जी फिर से देश का नेतृत्व करेंगे। जी आपको सबसे बड़ा चैलेंज है अजीत चौहान जी, शरद पवार जी। शरद पवार जी आज पूरे महाराष्ट्र का दौरा पे निकले। पहले बीड़ में उन्होंने सभा, आज उनका कहना है कि सक्सेसफुल सभा। वहां पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक हवा चल रहा है मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ एक लहर चल रहा है, फॉर इंडिया एक लहर चल रहा है। और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां भीड़ में उन्होंने धनंजय मुंडे जी पे बहुत आरोप आलोचना भी करने लगे। भाई इनके खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स आए थे, उनका कहना था तभी हमने संभाला उसको, अभी भी कंप्लेंट्स आ रहा है। तो ये पवार साहब का किस प्रकार से देखते हो आगे करके? उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने बोला कि पुनः ये वापस आऊंगा, वो देवेंद्र फडणवीस जी का याद दिला दिया, मगर देवेंद्र जी वापस आ गए, बट डिमोशन लेके आए। उनका मतलब कि उनका प्रमोशन होना चाहिए था, मगर डिमोशन करके वापस आए। तो शरद पवार जी इज पुटिंग अ फाइट। शरद पवार जी रिटायर होने वाला नहीं, बिकॉज ऐसे था कि अजीत पवार जी लास्ट मीटिंग में चौराटे के घर में उनको बोला था आप रिसिग्नेशन दे दो, आप रिटायरमेंट ले लो, या कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओ, या कुछ ऐसे करो, या मार्ग से हट जाओ। बट पवार साहब इज पुटिंग, शरद पवार इज पुटिंग अ फाइट। अजीत चौहान जी, शरद पवार जी का 17% वोट इतना आसानी से आपको नहीं मिलेगा, बीजेपी को नहीं मिलेगा। प्रदीप सर, मैं एक बात आपको ध्यान में ला करके देना चाहता हूं कि शरद पवार जी, राजू सर को अच्छी तरीके से याद होगा कि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आ चुके हैं। तब हम जनसंघ हुआ करते थे और मेरे क्लोज रिलेटिव नाना साहेब उत्तमराव पाटिल, मेरे अंकल, उस समय महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने थे, शरद पवार साहब सीएम थे। क्या पवार साहब भूल गए? मतलब आज
भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करते हुए पवार साहब ये कहते हैं कि मैं कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। पवार साहब तो हमारे विचारों के साथ रह चुके हैं, सत्ता में रह चुके हैं, हमारे सपोर्ट से मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हमारे साथ हमारी विचारधारा का पालन करेंगे, ये कह करके पुरोगामी लोकशाही दल का प्रयोग इसके पहले पुलोद नाम से, जनता पार्टी भी उसमें थी, जनसंघ भी उसमें था, हम भी उसमें थे। तो पवार साहब क्या कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। और एक बात प्रदीप जी, बड़े विनम्रता के साथ मैं कहता हूं कि शरद पवार साहब महाराष्ट्र के बड़े लीडर हैं। मैं परसों नांदेड़ में था, परभणी, अंबाजोगाई, केज, बीड, छत्रपति संभाजीनगर, कन्नड़, चालीसगांव, जलगांव और आज मैं नासिक में हूँ। इतना सफर 2 दिन में मैंने तय किया। मैं कार्यकर्ताओं से मिला, उनकी भीड़ की सभा से पहले भी मैं वहां था। मैंने लोगों का रुझान देखा है। लोग चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। एक बात तो है कि शरद पवार साहब की ऐसी पकड़ किसी समय महाराष्ट्र में हुआ करती थी कि शरद पवार जी लोगों को जिता सकते थे। बाद में शरद पवार जी की ताकत थोड़ी परावर्तित हो गई। लोग शरद पवार जी से डरते इसलिए थे कि भैया ये जिता नहीं पाएंगे पर गिरा देंगे। लोग आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे बड़ी ताकत के साथ खड़े हैं। ये मानना पड़ेगा। हम जब लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तब लोग भी बेसब्री से इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को मालूम है ये जितने भी सारे लोग, और आज पवार साहब जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप कर रहे हैं, क्या उनके पास जब ये लोग थे तब पवार साहब को इन लोगों के अंदर की बुराइयां नहीं दिखी? पवार साहब निस्संशय बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े लीडर है, पर जिस तरीके की ताकत और जो लोग शरद पवार साहब के साथ में थे ग्राउंड पर, आज वो लोग मतदाता शरद पवार जी के साथ नहीं है। बशर्ते इस बात को पवार साहब को मानना पड़ेगा कि अब पवार साहब की जिस तरीके की पकड़ थी अब वो नहीं बची है। मैं आपको महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के कुछ उदाहरण दूंगा। हमने हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स किया है। ये कहते हैं कि फडणवीस जी का डिमोशन हो गया। हमेशा सत्ता में रहने के लिए जिस पार्टी ने इनको जन्म दिया, जब जब शरद पवार जी कांग्रेस से बाहर निकले तब तक कांग्रेस की ताकत कम हुई। मराठी में बानगुळ, एक पेड़ पे एक परजीवी होता है, उस पेड़ का ही शोषण करके वो बड़ा होता है। ये उपमा उनको दी जाती है। वो उम्र में, पॉलिटिकल करियर में बहुत बड़े नेता है, पर सत्ता से भ्रष्टाचार, ये I think we've lost him. सामने जी। कब होते हैं। और मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी देश के लिए, राज्य की जनता के लिए, राज्य के विकास के लिए उन्होंने सत्ता का भी त्याग किया। ये होता है नेता, ये होते हैं विचार। लेकिन अजीत चौहान साहब, हमने कभी भी हमेशा सत्ता में रहने का नहीं सोचा। अजीत चौहान साहब, हमेशा सत्ता में रहकर के कैसे भ्रष्टाचार कर सकते हैं, उस माध्यम से कैसे लोगों को दबा के रख सकते हैं, इस विचार के लोगों के साथ। लेकिन अजीत चौहान साहब ये तो बताइए, जैसे आदरणीय राज ठाकरे साहब कह रहे हैं, काफी अन्य लोग भी अब कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी भी अब यही कह रहे हैं कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर उनको पहले शिवसेना तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई एक नाथ शिंदे को अपने साथ लेने के लिए, और फिर आपके पास वैसे मेजॉरिटी तो थी, फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई एनसीपी को तोड़ने के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास सक्षम नेता नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास सक्षम कार्यकर्ता नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के वोट कम पड़ गए हैं कि आपको टूटी हुई शिवसेना और टूटी हुई एनसीपी का सहारा लेना पड़ रहा है? अजीत चौहान साहब, सर इसको आप उल्टा क्यों नहीं देखते? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम पूरी ताकत के साथ सत्ता में थे, हमको सही में किसी की जरूरत नहीं थी और आज भी नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के जी मुझे एक बात बताइए, इतना सब कुछ होने के बाद
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर के नेताओं ने इतना त्याग करने के बाद भी कभी ये चर्चा क्यों नहीं होती कि भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी टूटेगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में चले जाएंगे? ये नहीं होता सर, ये चर्चा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम विचारों पे चलने वाले लोग हैं और हमारे यही विचार जो है, इन्हीं विचारों को, इन्हीं विचारों से ये नेता आकर्षित हुए और ये हमारे साथ आए हैं। ये आप इसे इस तरीके से क्यों नहीं देखते कि इन लोगों को अपने नेता से ज्यादा मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा हुआ? क्यों? मतलब सत्ता में थे ये लोग भी जब इन्होंने महाविकास आघाड़ी के सरकार के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, विरोधी विचारों के लोग एक साथ में थे, आपस में एक दूसरे को इतने ये लोग लताड़ रहे थे, अंदर ही अंदर इतना गंदा पॉलिटिक्स चल रहा था। इस सबसे तंग आकर के, तानाशाही से तंग आकर के, भ्रष्टाचार से तंग आकर के इन सब लोगों को लगा कि भाई हमें इलेक्शन में अगर जीतना है, फिर से हमें इलेक्शन में अगर आगे बढ़ना है, हमें फिर से सत्ता में आना है, तो मोदी जी का चेहरा बिल्कुल जरूरी है। मोदी जी के हमें साथ जाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के विचारों पे चलना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पॉलिटिक्स में जो लोग हम पर आरोप कर रहे हैं, उनकी लेजिस्लेटिव स्थिति क्या है सर? उनका वोट परसेंटेज क्या है सर? सर वोट परसेंटेज तो बाद में मालूम पड़ेगा। लेजिस्लेटिव स्थिति का जहां तक प्रश्न है, वहां पर आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि नेता आपके साथ आए हैं। ये कहा जा रहा है नेता आपके साथ आए हैं। अब देखना यह है कि वोटर भी आपके साथ आए कि नहीं आए, ये मालूम नहीं है। ये तो चुनाव में ही मालूम पड़ेगा। नेता आपके साथ जरूर आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ग्राउंड पर जैसे शिवसेना के जो बाला साहब ठाकरे के जो लॉयलिस्ट हैं, क्या वो आपके साथ आए हैं? ये तो चुनाव के बाद ही मालूम पड़ेगा ना सर। जैसे एनसीपी में क्या अजीत दादा पवार, सर क्या अजीत दादा पवार शरद पवार जी के खिलाफ या उनकी मुखालफत के सामने क्या अपनी बारामती की सीट जीत पाएंगे? बारामती की सीट जीती है अजीत दादा पवार को, याद रख लीजिए अजीत चौहान साहब। सर आज की तारीख, आज का समय, इस शो की डेट को याद रखते हैं, मैं भी सेव कर लूंगा। और बड़े आदर के साथ, और मुझे पता है आपने सवाल भी क्यों किया है, तो बड़े आदर के साथ सर मैं आपको ये कहता हूं कि बारामती की लोकसभा और बारामती की विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के विचार जिसके साथ होंगे वही जीतेगा, जरूर जीतेगा। और रही कार्यकर्ताओं की बात, सर आपने कई कार्यक्रम किए थे, आप व्यक्तिगत रूप से बाला साहब ठाकरे के मित्र रह चुके हैं जी। बाला साहब ठाकरे आपसे कई बार विचारों का आदान प्रदान करते थे। राजीव सर, आप दिल पर हाथ रख करके बताइए, क्या कांग्रेस के साथ शिवसेना सत्ता में बैठी है, ये देख करके क्या बाला साहब खुश होते थे? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। और सर हमको ये लोगों को याद दिलाना, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपने ये सवाल मुझसे पूछा। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि जिन लोगों के साथ बाला साहब ने विचारों का संघर्ष किया, बाला साहब की व्यक्तिगत रूप से किसी से दुश्मनी नहीं थी, राष्ट्रवादी विचार का एक ऐसा राजनेता था जो बिल्कुल शेर की तरह जिया और जिन्होंने कांग्रेस को पुरजोर विरोध किया। बाला साहब ठाकरे ने एक ही बार इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी का साथ दिया था। वैचारिक विरोध बाला साहब का कांग्रेस के साथ हमेशा था। सर आप बताइए, क्या कांग्रेस के साथ, शरद पवार जी के साथ शिवसेना सत्ता में बैठी है, ये चित्र बाला साहब को मानने वाले, हिंदुत्व के विचारों को मानने वाले कार्यकर्ताओं को सहन ही नहीं हो रहा था सर। और इसीलिए ये कार्यकर्ता हमारे साथ है। और आप एक बात राजनीति की बड़े अच्छे से राजनेता समझते हैं कि अगर जनता की इच्छा हो तभी वो कदम उठाते, और जो जनप्रतिनिधि होता है उसको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की, अपने परिसर की, अपने मतदाताओं की भली भांति समझ होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि उन लोगों ने एकनाथ शिंदे साहब के साथ में बाला साहब की शिवसेना को जीवित रखने का और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का फैसला लिया। और ऐसे शिवसेना, ऐसे एनसीपी की बात जी, एनसीपी हमेशा, एनसीपी का जन्म ही सर सत्ता में रहने के लिए हुआ था। जो लोग, उनका बिल्कुल नजरिया साफ है,
हमारे काम होने चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के काम होने चाहिए, हमारे लोगों के काम होने चाहिए, हम इसीलिए राजनीति करें। और स्पष्ट रूप से अजित पवार जी ने बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में, अमित भाई के नेतृत्व में महाराष्ट्र का विकास हो सकता है, ऐसा उनको व्यक्तिगत रूप से लगा। उनके सारे साथी जो एनसीपी के एमएलए हैं वो भी उसी विषय पर उनके साथ है। इसमें बुरा क्या है सर? चौहान साहब, आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज चैलेंज है कि मोदी साहब ने लाल किले में और पार्लियामेंट में हमने देखा, उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट, बोले कि आई विल एलिमिनेट तुष्टिकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को मैं एलिमिनेट करके ही रहूंगा। मोदी जी वाज एब्सोल्युटली क्लियर एंड ही आल्सो सेड मैं आई एम कमिंग बैक, लाल किला में अगले साल मैं झंडा वंदन इंडिपेंडेंस डे में करने आऊंगा। मोदी जी का कॉन्फिडेंस, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। मगर कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस का ये स्लोगन है, कांग्रेस का कहना कि मित्रकाल से आजादी पाना है, बेरोजगारी से आजादी पाना है और जुमलों से आजादी पाना है। इंडिया इज वन एंड दे से हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा लाल किले से। लाल किले में कांग्रेस लेड इंडिया और कांग्रेस, शायद कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर होगा। महबूबा मुफ्ती आज कहा कि शी वुड लाइक टू सी राहुल गांधी एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो सर कैसे 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 रणनीति कैसे हो रहा है चौहान साहब? कांग्रेस इज ऑल्सो पुटिंग अप अ गुड फाइट। आपका पॉलिसीज वो फंटास्टिक, नेशनल पॉलिसीज, आर्टिकल 370, डिजिटल रेवोल्यूशन, फिफ्थ ग्रेटेस्ट इकोनॉमी, एवरीथिंग इज देयर। और गरीबों का जन कल्याण, फार्मर्स, शौचालय से लेके पानी घर घर, आपने हर चीज फुलफिल कर दिया। फिर भी कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इधर है कि 62% ऑफ वोटर्स आर अगेंस्ट मोदी। कैन दे रैली ऑल द 62%, चौहान साहब? सर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कांग्रेस इंडिया में जीता है, पता नहीं ये लोग कहाँ से इनके सर्वेज लेकर के आते हैं, परसेंटेज का हिसाब लेकर के आते हैं। पूरा देश दिल से मोदी जी के साथ है। और कांग्रेस के विचार क्या है, अगर आपको सर पिछले इलेक्शन की परसेंटेज के हिसाब से जा रहे हैं। 2019 पिछले इलेक्शन 2019 में इन टोटल बीजेपी और एलाइज को 38% मिले थे। तो कैलकुलेशन ये है कि बाकी 62% आपके खिलाफ हो गए। ऐसे मैथमेटिक्स वर्कआउट नहीं होता है, अरिथमेटिक वर्कआउट नहीं होता है, लेकिन फिर भी दैट इज द बेसिक कैलकुलेशन। अजीत सर, प्रदीप सर, मैं कई रील्स आते हैं आजकल, आप ना वो छोटे छोटे 15-20 सेकंड के रील्स होते हैं, तो उसमें मोदी क्यों चाहिए देश को, ये जब देश की जनता कहती है ना, वो बिल्कुल कांग्रेसियों ने सुनना चाहिए। 370 के खिलाफ जी, जिनको चलती फिरती कांग्रेस की विचारधारा कहा जाता है, ऐसे कुछ सीनियर वकील जब अपने विचार सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट में रख रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल सुनने लायक है, और वो है कांग्रेस के विचार। जी। ये चीज समझी है और ये चीज जानी है कि किस तरीके से हम लोगों में फूट डालें, हम लोगों को गुमराह करें। ये एक बात कांग्रेस के लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। जिस तरीके से आजकल कांग्रेस प्रचार कर रही है ना, उस प्रचार के कारण इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि धूमिल हो रही है। आम आदमी इस देश का हमेशा से माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ था, है और रहेगा। और मुझे दिल से ये लगता है जब हम अलग अलग शहरों में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को अंदर से लग रहा है कि फिर से इलेक्शन आएगा तो फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। और मैं तो स्वागत करता हूं, और मैं तो इतना खुश हूं, राहुल गांधी जी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप रीइंस्टेट हो गई है, वो फिर से पार्लियामेंट में आ गए हैं। और सर, राहुल गांधी ने विरोधी खेमे का सेनापति पद ले लिया है, बड़ा मैं इससे खुश हूं। देखिए आप, सेनापति कौन? राहुल गांधी जी चले गए थे मैदान से, तो विरोधी खेमे के तो कई लोग वहां पे उनको प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने, वो दिन में सपने देख रहे हैं। आप देखिएगा, इन्हीं लोगों में सत्ता और प्रमुख पद को लेकर के इतनी आपस में जंग होने वाली है, और यही जंग इन लोगों को लेकर के डूबेगी। हम हमेशा देश का विचार करते हैं। मोदी जी
हमेशा मुद्दों पे बात करते हैं, विकास पे बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने क्या काम किया, ये बड़ी विनम्रता के साथ बार बार देश के प्रधान सेवक देश के सामने रखते हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इस देश पर राज कर रही है, इस बात का दुख है सर। इनको मदद करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया है, इनको मदद करने के लिए कई धार्मिक संस्थाओं की तरफ से फंडेड एनजीओज इनके लिए काम कर रही है। लेफ्ट के लोग और कांग्रेस, जिन्होंने एक दूसरे पे की छाती पे बैठकर गले में छुरे भोंपे हैं, आजकल ये गले में गले डाल करके मिले सुर मेरा तुम्हारा गा रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक मोदी को रोकना है इन लोगों को, क्योंकि इनको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी रुक जाएंगे तो फिर से ये फॉरेन फंडिंग ला करके इस देश में अराजकता फैलाएंगे, ये फॉरेन फंडिंग ला करके इस देश में जो धार्मिक आतंकवाद था वो फैलाएंगे, ये फिर से देश की सीमाएं खोल देंगे, ये फिर से चौहान साहब, देश चौहान के साहब, बट आपको जी अगर यूपी 100% होना चाहिए, 80 से 80, योगी आदित्यनाथ जी लगे काम पे। यूपी के बाद महाराष्ट्र 48 सीट्स, बिगेस्ट टारगेट है 45। आपको बहुत एसेंशियल है उद्धव ठाकरे जी के 16% वोट, शरद पवार जी के 17% वोट, तो इसको जोड़ना बहुत जरूरी है। 45 सीट्स निकालना 48 में से, जो टारगेट शायद बीजेपी ने अलॉट किया है महाराष्ट्र को। चैलेंज बहुत बड़ा है। पृथ्वीराज चौहान जी का कहना है, कांग्रेस का पृथ्वीराज चौहान जी बोले कि आरएसएस भी मोदी जी के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ आरएसएस भी नहीं है, आरएसएस ने भी हट गया है मोदी जी से, तो प्रधानमंत्री कैसे, पृथ्वीराज चौहान जी का कहना है कि कैसे बनेगा प्रधानमंत्री मोदी जी। एक चैलेंज आपके सामने है, ये जो मेन पार्टीज है इसको कैसे आप 45 का टारगेट अचीव करोगे चौहान साहब? बड़ा चैलेंज है आपके। विजय टिवार का कुछ कहना है, कांग्रेस का नाना पटोले जी, पृथ्वीराज चौहान, संघर्ष जारी है। सर, ये वही पृथ्वीराज बाबा है जो कांग्रेस के समय में महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। इनके और शरद पवार जी के बीच में भयानक झगड़ा चल रहा था और उसी को लेकर के एमएसआरडीसी को 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। शरद पवार जी ने कहा था कि सीएम के हाथ को लकवा मार गया है, एनसीपी के फाइल्स पे साइन नहीं करते। अब इन लोगों ने एक दूसरे को सत्ता में रहते हुए इतना लताड़ा है। ये वो पृथ्वीराज चौहान जी है जिनके सत्ता में होते हुए कांग्रेस का इतना ज्यादा नुकसान हो गया, जिनकी निर्णय क्षमता को लेकर के महाराष्ट्र के पत्रकारों ने इस कदर लिख दिया कि पूरा कामकाज ठप हो चुका है। शरद पवार जी को उनकी जगह दिखाने के लिए कांग्रेस ने इनको अपॉइंट किया था महाराष्ट्र में, ये पूरी महाराष्ट्र की कांग्रेस को खत्म कर गए। अब वही पृथ्वीराज चौहान जी जब कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी जी के साथ नहीं है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि जिनके पॉलिटिक्स की समझ सिर्फ बदला लेने की है। लेकिन यहाँ पर ये बताए ना सर, अजीत चौहान साहब, अजीत चौहान साहब, आप सिर्फ और आपको सिर्फ आवाज आ रही है? जी, जी अजीत चौहान साहब, क्या पृथ्वीराज चौहान जी, साहब की जी। कोई मीटिंग हुई मोहन भागवत जी से या किसी और से? मतलब ये कहाँ से आया कि आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हो गई? ये तो बता दो, ये मिस्ट्री क्या है सर, ये तो सॉल्व कर दो सर आप, मतलब प्लीज। सर कब मीटिंग हुई सर, मुझे मालूम नहीं है, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, मेरे पास जानकारी नहीं है सर। जी जी जी, ये जो लोग हैं, ये इनमें से कुछ लोग जो है वो मीडिया को दाने डालना बंद नहीं करते। मतलब इनके कौन सोर्सेस है, कौन इनको खबरें देता है, किस तरीके से ये लोग न्यूज फैलाते हैं, मुझे पता नहीं, पर ठीक है, महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो किसके आशीर्वाद से रह चुके हैं, उनको क्यों महाराष्ट्र में लाया गया था, उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में क्या काम किया है, इसकी अच्छी तरीके से जानकारी राजीव सर आपको है। सर सबको है, तो सर सबको है, मैं ये मुझको नहीं, सबको है। मैं ये मानता हूँ कि जी पृथ्वीराज बाबा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बड़े सीनियर लीडर हैं, जी उनको समझ है। अगर वो, और उनको एक सीरियस पॉलिटिशियन करके जाना जाता है, अगर उनकी जो छवि है वो उनको बरकरार रखनी है, तो इस तरीके के हास्यास्पद विधान उन्होंने नहीं करने चाहिए। Sir, he was a very good MOS in PMO. He should have remained MOS in PMO. Very frankly speaking. वहाँ पर वो फाइल वगैरह अच्छी तरह फाइलिंग करते थे, क्या 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 प्रधानमंत्री जी को दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, वो सब करते थे।
वैसे ही उनको रहने देना चाहिए था। लेकिन सर चलते चलते एक चीज़ है, दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स, congratulations to everybody, congratulations to the whole of India. The separation has taken place from the propulsion rocket. The Vikram lander has separated and is now, it has started its descent towards the moon. On the 23rd of August, कोई 5:45 या 47 पे विक्रम लैंडर जो है वो चंद्रमा पे लैंड करेगा। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में सर, अजीत चौहान साहब? सर ये देश के वैज्ञानिकों का यश है। जी। और मैंने व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे एक फोटो देखा था कि श्रीहरिकोटा के स्टैंड पर सन 60 के दशक में एक वैज्ञानिक रॉकेट के एक पार्ट को साइकिल पर ले जा रहे थे। जी। और दूसरा एक चित्र था कि बड़े गर्व के साथ चांद्रयान चंद्र की ओर जा रहा था। जी। तो ये सफर है सर, ये बट ग्रेट फॉर द कंट्री, इजंट इट? आई मीन ये भारत के लिए बिल्कुल, बहुत बड़े और गौरव सर, की बात। और सर मैं ये बिल्कुल आपके माध्यम से इस देश की जनता को कहूंगा कि इस देश में राजनीति होती रहेगी। जी। अलग अलग पार्टियां सरकारें बनाती रहेंगी, जैसे कि अटल जी ने कहा था कि सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी, पर जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, उस क्षेत्र में जिस डेडिकेशन से आप काम करते हैं, उस डेडिकेशन की देश को जरूरत होती है। और मतलब मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस चांद्रयान की मुहिम में। मेरे डिस्ट्रिक्ट के 2 लोगों का सहभाग था सर। एक हमारे चोपड़ा के है, उत्तर महाराष्ट्र के, एक धुले के है। तो बड़ा गौरव होता है सब सर, जब देश के बुद्धिमान लोग जी। देश को ये गौरव के पल हासिल करके देते हैं। हम मीडिया में रहते हुए इतनी ऐसी खबरें चलाते हैं, कभी कभी हमें भी डिप्रेशन आ जाता है। उन सब में हम सब लोग यंग पत्रकार हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिले थे, तो उन्होंने हमको एक बात कही थी कि आप रोज एक पॉजिटिव न्यूज करिएगा। और जब मैं एक नेशनल न्यूज चैनल में काम करता था, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम सर के कहने पर हमने एक रोज पॉजिटिव न्यूज चलाना शुरू कर दिया था। तो जिस इस तरीके के ये पॉजिटिव लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, देश लोग हैं, इन सबको मैं सलाम करता हूँ, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ, इनके धैर्य को सलाम करता हूँ, इनके सातत्य को सलाम करता हूँ कि कई बार अपयश आने के बाद भी इन्होंने देश को ये गौरव महसूस करवाया। जबरदस्त, फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज अजीत चौहान साहब। लेकिन चलते चलते ये तो बता दीजिए सर कि आज की तारीख में जिस तरीके से बिसात बिछी है, मतलब ना चाहते हुए भी लोग आपकी मदद कर रहे हैं। मतलब अब महबूबा मुफ्ती का तो आपने ब्रीफिंग नहीं दी होगी कि भैया ये बोलो। अब जब महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि वो चाहती हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो हो गया काम। मतलब अब आपको तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस वही बाइट अगर आप दिखाते रहे हर जगह पे, तो हो सकता है वायनाड में भी जीतना जरा मुश्किल हो जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये। और ऊपर से अब तो और छोड़िए सर, और तो और छोड़िए, आपके परम मित्र, आपके सबसे बड़े समर्थक और आपके सबसे बड़े प्रोपेगेंडिस्ट दिग्विजय सिंह साहब भी जाग गए हैं। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी कल तो उनकी भी स्टेटमेंट आ गई है। तो स्पेशली जो कमलनाथ साहब ने कहा कि भारत तो पहले से हिंदू राष्ट्र है, 85% से ज्यादा यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदू राष्ट्र तो पहले ही हो गया। तो उसके ऊपर वो कहते हैं जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं उनको रिजाइन करना चाहिए, ऐसा दिग्विजय सिंह साहब ने कहा है। तो ये सब आप खुद करवाते हैं या अपने आप हो जाता है ये सब? मतलब क्या है ये? मतलब जरा मिस्ट्री सॉल्व करें ना सर प्लीज। सर हिंदुस्तान में हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि भैया अच्छे काम के लिए जाओगे तो भगवान तुम्हारा साथ देगा, अच्छी अच्छी चीजें अपने आप होती रहेगी। आदरणीय मोदी जी देश को विकास की राह पर लेकर के जा रहे हैं। मोदी जी इस देश की जनता के चहेते नेता हैं, ये कोई नकार नहीं सकता। और जैसे कि मैंने कहा, ये जो ऐसे सारे लोग हैं, इनकी वजह से ही इस पूरे माहौल में थोड़ा बहुत मजा आ जाता है सर, और लोगों को विचारों की असलियत क्या होती है वो भी पता चल जाती है। सिर्फ एक कमी है सर, तो मैं तो एक कमी है, उसको भी जगा दो, आप फोन करवा दो ना सर, आप ही कर लो फोन, मणिशंकर अय्यर साहब को भी जगवा लो, वो सोए हुए हैं कहीं। सही वो भी जाग जाएंगे। और मुझे लग रहा है और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वेरी फ्रैंकली। बट इट्स अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। कभी सर आप अगर आप बीकेसी में हो कहीं बांद्रा,
कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हो, ज़रूर ऑफिस में आएँ, हमारे साथ बैठ करके ज़रा चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, जो भी आपको पसंद हो। प्लीज़, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर। प्लीज़ कम टू आवर ऑफिस। वी हैव ओनली मेट सर ऑन गूगल मीट। मेरी खेत की ऑर्गेनिक चीजें मैं आपके लिए ले आऊंगा सर। दैट बी वंडरफुल। और मैं तभी मिलने आऊंगा, मेरी फसल निकल आएगी तो मैं आपसे मिलने जरूर, दोनों से मिलने जरूर आएंगे। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच सर। फेसबुक पे प्रदीप सर तो मुझे रोज मिलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Thank you very much, sir. Thank you very much, Netaji Chauhan. Great pleasure, as always, talking to you. And keep up the थैंक यू good सर, work. जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर, वंदे मातरम। और आप इसी तरह महाराष्ट्र में घूमते रहें, लोगों से मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you. Right now, the moment with us from the Congress to present exactly the opposing point of view, we have our old friend, Mr. Dhananjay Junarkar साहब. Dhananjay Junarkar साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्रावण का महीना है, श्रावण का महीना है सर, श्रावण का महीना है सर। ये महबूबा मुफ्ती जी ने जो तारीफ करी है राहुल गांधी जी की, क्या सर्टिफिकेट दिया उन्होंने, साथ में दिग्विजय सिंह साहब भी जाग गए हैं। कोई मतलब कांग्रेस से कोई हिदायत नहीं जा सकती दिग्विजय सिंह साहब को, अगर अपना मुंह ना खोलें। मतलब अब कमलनाथ जी के खिलाफ बोलने की जरूरत क्या पड़ गई थी उनको, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। कांग्रेस का जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है ये सब लोग बाहर निकल आते हैं। धनंजय जुनकर साहब आप बताएं, मैं बिल्कुल खुले दिल से बोल रहा हूं आपसे। सर अभी भी बहुत अच्छा होने वाला है और हम ये चाहते हैं कि जितना बीजेपी वाले और जितनी गोदी मीडिया राहुल गांधी जी पे हंसेंगे और जितना अंडर एस्टिमेट करेंगे वो अच्छा है हम लोग को, क्योंकि हम हमारा काम कर रहे हैं और वो लोग अभी 2014 के मौसम में ही है कि ये होगा वो होगा करके, लेकिन अंडर करंट समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे को तो जहां हम भी घूम रहे हैं, अभी मैं आपके पहले वाली डिबेट सुन रहा था, जितना भी उन्होंने कहा कि उनको वो अभी भी अहंकार में है और अभी भी वही सत्ता के मद में है। लोगों में जितना गुस्सा है उनको समझ में नहीं आ रहा है। पहले 2014 में 2019 में जो भी लोग ये बोलते थे कि अगर मोदी जी नहीं तो कौन, लेकिन अभी ये बोलते हैं कि मोदी नहीं चाहिए, बाकी कोई भी चलेगा पर मोदी नहीं चाहिए। और ये उन्होंने अभी आपके पहले के डिबेट में जो कह रहे थे कि मोदी के लिए के लोग गांव-गांव में घर-घर में सोच रहे हैं कि मोदी जी ऐसा है। सर हमारे पास हम लोग भी घूमते हैं, अभी ऐसा सिचुएशन है सर कि मोदी जी चैनल पे टीवी पे दिखते तो लोग चैनल बदली कर रहे कि ये नहीं मानते, टीवी पे पसंद नहीं कर रहे। आप भूल जाइए। और नेक्स्ट 15 अगस्त को ये मोदी जी या तो गुजरात में अपने घर पे बैठ के टीवी देखेंगे और उसमें 15 अगस्त में कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर का या कांग्रेस के इंडिया के जो लोग हमारे हैं वो जो चुनेंगे उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर का उनका भाषण वो घर पे बैठ के सुनेंगे। सर वो इंतजार में लोग रुके हुए हैं। अमित शाह जी के साथ, क्या अमित शाह जी आपके साथ होंगे? अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का एक और छोटा सा न्यूज में अभी आपका 2 घंटे पहले मैंने जो पढ़ा है नेट के ऊपर वो मैं आपको देता हूं। सर चीन के जो शेंजेन प्रांत है चीन का, वहां के उया 90 जो मुख्य सूत्रधार है वो व्यक्ति ने गुजरात के पाटन और बनासकांठा यहाँ 2000 से 2022 में 2020 से 2022 में वो वहां रहा और उसने वहां एक ऐप बनाई बेटिंग की, फुटबॉल के ऊपर बेटिंग की, और उन्होंने डेली 200 करोड़ रुपए का चीटिंग किया। 9 दिन में वो 1800 करोड़ का चीटिंग करके भाग गया। अभी आप मुझे बताइए सर कि गुजरात में पूरा कंट्रोल आदरणीय मोदी जी का है, आदरणीय अमित शाह जी का है, और ये बाउंड्री के ऊपर के प्रांत है बना पाटन, और ये यहाँ चाइना का आदमी आता है वो ये सब ऐप बनाता है करके चला जाता है। तो इनका ये ध्यान कहाँ है? तो ये फेलियर है इन लोग का, इन लोग की पूरी शक्ति विपक्ष के घर पे नजर रखना। सर आप लोगों का चाइना के साथ वैसे भी बहुत प्रेम है, भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का, दोनों का। सर ये तो देखो एक क्रिटिसिज्म के हिसाब से हम लोग सुनते हैं, पर लेकिन आप देखिए इन्होंने जितने झूले झुलाए उनके साथ घाटिया पापड़ा खाया, उसका रिटर्न में तो गलवान अपने को मिला। और आपने देखिए कि ये चीफ मिनिस्टर होने के समय पे वो कितनी बार वहां गया, उसके बदले उनको क्या गुजरात की क्या प्रगति हुई भगवान जाने। तो सर ये सब तो चीजें हैं। तो अभी जो कांग्रेस सीएजी के कोई 7 मुद्दे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है, कोई 7 के करीब मुद्दे हैं। वो कहते हैं कि ये सबसे बड़े स्कैम हैं पूरे मिलेनियम के, 21वीं सदी के सबसे बड़े स्कैम हैं जो उजागर किए गए हैं सीएजी द्वारा। और कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस इसको लेकर के डोर टू डोर जाएगी और हर जगह पर इनको उजागर करेगी।
धनंजय जुनरकर। बिल्कुल सर, ये जो स्कैम है उसके बारे में कहने के पहले मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूं सर, मुनव्वर राणा साहब की। सर, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। जी सर, इन्होंने सर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2,83,00,000 का फंड मोदी जी की प्रचार के अंदर अलग अलग बैनर्स छपवाई के अंदर इन्होंने खर्चा कर दिया। वो पैसा लूले, लंगड़े, अपंग, अंधे, विधवा, ऐसी गरीब लाचार महिला और विद्यार्थियों के लिए पेंशन के लिए ये पैसा था सर। वो पैसा भी ये लोग ने नहीं छोड़ा। संजय गांधी जैसी निराधार योजना थी, महीने में 1,000 रुपया सर उसमें मिलता है। उस 1,000 रुपए में अगर सुबह एक और शाम को एक वड़ा पाव भी अगर आपको खाना है सर, तो वो भी 1,000 रुपए में पूरा नहीं होता। ऐसे लोगों का उन्होंने वो भी पैसा 4-6 महीना से उन्होंने पेंशन दिया ने, वो पैसा खुद की छवि चमकाने के लिए खर्चा कर दिया। सर, आयुष्मान भारत में मृत लोगों को जीवित दिखाकर उनका भुगतान कर दिया। एक ही नंबर से 7.5 लाख लाभार्थी जुड़े होने का फर्जीवाड़ा किया। सर, ये नंबर किसका है, ये कहां पैसे चले गए, इनके घरों की बेल ईडी कभी मारेगी कोई मालूम नहीं। सर, द्वारका एक्सप्रेस 1 किलोमीटर में 18 करोड़ की बात थी रिपेयरिंग की, उनका बनाने की, वहां 250 करोड़ रुपया का पेमेंट हो गया सर 1 किलोमीटर के लिए। सर, कांग्रेस ने 450 करोड़ में मंगल पे यान भेज दिया था सर, 450। इन्होंने, मोदी जी ने 2 किलोमीटर रास्ते के लिए 500 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया सर। अगर 4 किलोमीटर के लिए आप 1,000 करोड़ खर्चा करते हैं सर, तो राजधानी एक्सप्रेस 800 करोड़ में एक राजधानी एक्सप्रेस बनती है सर। मतलब पैसे कहां जा रहे हैं? अच्छा, वो मोदी जी जो उद्घाटन कर रहे हैं रोड के, अलग अलग प्रकार के हाईवे के, वो 8-8 दिन 10-10 दिन के बाद, उद्घाटन के बाद वो तो पूरे धस रहे हैं या कुछ ना कुछ उसका आपने देखा नुकसान ही हो रहा है। और HAL जो हमारी सबसे पुरानी संस्था है, उसके डिजाइन प्रोडक्शन का उन्होंने जो खामियां निकाली, उसमें 159 करोड़ का नुकसान कर दिया। ये सब चीजें तो सर हम लोगों तक ले ही जाएंगे, पर हम लोग को जो हमारे पे आरोप किए थे 1,73,000 करोड़ का जो सीएजी घोटाला, जो हुआ ही नहीं, जो कुछ भी हुआ नहीं, पर उस समय जो मीडिया कर रही थी, आज एक भी मीडिया ये कैग के ऊपर का एक भी मुद्दे के ऊपर अगर समझो प्राइम टाइम में कुछ कर ले तो लोगों को जागरूकता होगी, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है सर। और आप आईटी का जो अभी बीच में निर्मला सीतारामन जी का भी भाषण सुना, ऐसा हो रहा है, कहा भी कितना झूठ, मोदी जी के साथ रह के लोग सब झूठ बोलना सीख गए, उनकी पूरी टीम झूठ बोलना सीख गई सर। इस समय 2022-2023 में 7.40 करोड़ लोगों ने सर ITR भरा है, उसमें से 5.16 करोड़ लोगों ने जीरो टैक्स लायबिलिटी दिखाई है सर। मतलब आप सोचो, 1,31,390 लोगों ने उनकी इनकम 1 करोड़ के ऊपर दिखाई है, बाकी 1 करोड़ लोग इस एक टैक्स जमा कर पाए, टैक्सेबल इनकम कर रहे हैं। उसमें कॉर्पोरेट टैक्स 30% से ये लोग ने 22% कर दिया, और वो लॉस कवर करने के लिए पेट्रोल, डीजल, GST पे टैक्स बढ़ा दिया सर। गरीबों का सर, गरीबों की पॉकेट मार सरकार है ये। 26.51 लाख करोड़ का टैक्स। जुनरकर साहब, आपका जबरदस्त कांग्रेस का मीडिया कैंपेन है। योर टैगलाइन इज फर्स्ट क्लास। मित्रकाल से आजादी, यानी आपने हाईलाइट किया अडानी से आजादी, मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, बेरोजगारी से, अनएम्प्लॉयमेंट से आजादी, जुमलों से आजादी। और इंडिया, इनफैक्ट आज जैसे बजाज साहब कह रहा था कि महबूबा मुफ्ती ने डिक्लेयर कर दिया कि राहुल गांधी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, और लाल किले में अगस्त 15 को राहुल गांधी जी 2024 में झंडा लहराएंगे। महबूबा मुफ्ती, योर इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट। बट 370 आज जो लोग तारीफ कर रहे हैं सर जुनरकर साहब, एक है शीला रशीद जो पूरे जिंदगी उनका बीजेपी का आलोचना करते निकला है। उन्होंने कहा कि कश्मीर इज सीइंग दैट काइंड ऑफ वाइब्रेंस नेवर सीन बिफोर। जुनरकर साहब, नेवर सीन बिफोर। एक शाह फैजल थे ब्यूरोक्रेट जो छोड़ के गए थे, वो वापस ज्वाइन कर लिया, बोले कि कश्मीर इज बैक टू नॉर्मलसी। आई मीन आर्टिकल 370 हैज ट्रांसफॉर्म जुनरकर जी। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवाद वांटेड जावेद मधु, वो तिरंगा लेके खड़ा हो गया। पहले कभी तिरंगा से नफरत जो थे उनको तिरंगा। तो डोंट यू सी दैट दीज थिंग्स आर गुड फॉर द कंट्री जुनरकर साहब? एंड जो लोग तारीफ कर रहे हैं, जैसे शीला रशीद है, शाह फैजल है, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, टेररिस्ट आतंकवाद, वो झंडा लेके खड़े हो गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ डू यू सी बीजेपी सेइंग दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मोदी हैज क्रिएटेड जुनरकर साहब?
सर ऐसा है कि 370 ये जो अनुच्छेद है ये टेम्पररी अनुच्छेद था, इसको आज नहीं तो कल जाना ही था। और उसके अंदर उसको जाने की प्रक्रिया भी है, जैसे लाने की प्रक्रिया थी वैसे जाने की प्रक्रिया भी थी कि वहां की जो चुनी हुई सरकार है वो ये प्रस्ताव लेके जाएगी राज्यपाल के पास, उसके माध्यम से राष्ट्रपति के पास, और उसके बाद वो चीज खत्म होगी। पर इनको मालूम है कि वहां ये होगा नहीं, क्योंकि ये लोग सत्ता में रहने के बाद भी ये हो नहीं रहा था। तो इन्होंने सत्ता बर्खास्त करके बिना कोई सरकार के राज्यपाल जी को वहां से काम करके इन्होंने संविधान को तकलीफ में लाके अपने मन से वो काम किया। चलो हम लोग ये समझते कि चलो कि कोई भी रास्ते से 370 आप लेके आए, तो 370 लाने के पहले की वहां की स्थिति और 370 लाने के बाद जो कश्मीरी पंडित के बारे में इनका जो सबसे बड़ा मुद्दा था उसकी स्थिति में एक व्हाइट पेपर ये क्यों नहीं लाते कि वो उन्होंने गए 5 साल में पहले क्या था और या 4 साल में क्या था, या ये आने के बाद जुनारकर साहब छोटी सी बात, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा हूं। जहां तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, भले आपकी सरकार हो यानी कांग्रेस की सरकार हो, ये दर्शकों के लिए है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी बहुत भरसक कोशिश करी, बहुत प्रयत्न किए कि कश्मीरी पंडितों का एक बार फिर पुनर्वसन हो जाए कश्मीर में। कश्मीरी पंडित नहीं माने। उसी तरीके से आज भी मोदी सरकार भी भरसक प्रयत्न कर रही है कि कश्मीरी पंडित वहां वापस जाएं। कुछ लोग गए हैं लेकिन वहां कश्मीरी पंडित नहीं मान रहे हैं। सर वेरी फ्रैंकली, आर्टिकल 370 के रिपील के बाद 1947 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले साल 2 करोड़ पर्यटक गए वहां पे। 2 करोड़, 2 करोड़ सर, 2 करोड़, इट्स अ रिकॉर्ड। तो आर्टिकल 370 के रिपील के बाद बहुत कुछ अच्छा तो हुआ है वहां पे, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जुनकर साहब सर देखो, मेरा कोई पर्सनल उस कश्मीरी पंडित या किसी उसके ऊपर कोई पर्सनल मेरा कोई विरोध या क्रिटिसिज्म नहीं है। देश के लिए जो भी चीज अच्छी होगी वो उसके लिए, और हर सरकार कुछ ना कुछ अच्छा करती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। हम लोग आदरणीय मोदी जी ऐसा काम नहीं करते कि बाबा इसके पहले कुछ हुआ है नहीं, 2014 में ही देश आजाद हुआ, उसके पहले पृथ्वी चौरस थी, मोदी जी ने आके उसको गोल कर दी। ऐसा इस प्रकार की हमने हमारा इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं। अगर अच्छी चीज अगर हुई है और देश के लोग वहां जा रहे हैं, वहां घूम रहे हैं और वहां के लोगों को इनकम में कुछ इजाफा हो रहा है तो उसका आनंद है हमको। पर लेकिन जिस प्रकार से ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ का आदमी वहां इतना प्लॉट लेगा, इतना ये हो सकता है, तो मोदी जी के आदरणीय जितने भी मित्र है, उद्योगपति मित्र है, कितने प्लॉट उन्होंने वहां लिए, कितनी सिटी वहां उन्होंने बनाई, जितनी तो यहाँ बता रहे थे कि यहाँ एक एक गांव, एक एक लोकसभा का व्यक्ति सांसद गोद में लेकर 2014 से लेकर 2023 तक तो एक भी गांव देखने को नहीं मिला। तो उस प्रकार से हम देखना चाहते थे कि मोदी जी के उद्योगपति मित्रों ने कितने वहां गांव या खेड़े जितने भी बसे हुए, आखिरी गांव अपना मैंने सुना आपका बीच में पहले, तो उसने कौन से गांव लिए, कहाँ डेवलपमेंट हुई। आप 1.5 साल 2-2 साल इंटरनेट बंद करके वहां के लोगों को आपने परेशान कर दिया, वहां के बच्चों की स्कूलें बंद कर दी, वहां के रोजगार खत्म आपने कर दिए। तो उन लोग को वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा सर कि वहां की रोजगार है। यहाँ के लोग वहां गए, वही उनका रोजगार है। वहां खुद का क्या डेवलपमेंट है आप वो मुझे दिखाइए। जितने महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट यहाँ से गुजरात में लेके जा रहे थे, फिर गुजरात में से भी वो लोग भाग गए, तो उसमें से ऐसे 2-4-5 प्रोजेक्ट कश्मीर में आपने 14 साल में 15 साल में क्यों नहीं दिखाया कि चलो 5 बड़े प्रोजेक्ट है, ये वहां हम लोग सेटल करते हैं, आप बिंदास काम करो, सब कुछ होगा। ये क्यों नहीं आपने आज तक दिखाया। खाली लाल किले पे से बोलने से लोगों का विश्वास नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते और हर बार एक नया सपना दिखा के जाते हैं। इस बात के ऊपर लोगों का पूरा विश्वास हो गया सर। जुनकर साहब, आज उनका कैंपेन, जो बीजेपी सोशल मीडिया कैंपेन है, अचीवमेंट 9 साल बेमिसाल, मोदी जी का कोई टक्कर ही नहीं है। एयरपोर्ट 74 का 148, हाईवेज 91,287 किलोमीटर लूटकालीन कांग्रेस काल में, बीजेपी का कहना है, और हमारे काल में 1,45,240 किलोमीटर हमने बांधा है। जो आईटी सेक्टर है, जो आपके जो 5G वगैरह 2G 5G बोले कि 26 टाइम्स कम हो गया रेट, यानी कांग्रेस के टाइम पे जितना ज्यादा था 269 पर जीबी, आज 10 रुपया। जो एक एक कैलकुलेशन उन लोग दिया कि आज हर चीज में आम आदमी को टोटल फायदा है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बोले कि कितना गुना, 610 किलोमीटर कांग्रेस के राज में था, आज 6,560, यानी 10 गुना।
हर चीज डबल टिबल। जोरकर साहब, ये रिपोर्ट कार्ड जो मोदी जी बनाकर सब जगह भेज रहे हैं, तो ये कैसे आप नाकार कर सकते हो? अब हमने 370 तो एक चीज पहले बोल दिया था, उससे पहले 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 10वें से 5, डिजिटल रेवोल्यूशन, राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, स्वच्छ, फिर गरीबों के लिए जन कल्याण जितने भी योजना है, आवास घर देने से, गैस देने से, घर में शौचालय बनाने से, घर में हर घर नल से जल, और फिर 70 करोड़ लोगों को आसपास फ्री राशन। जोरकर साहब, कोई छोड़ा नहीं। भले कांग्रेस रूल स्टेट अच्छा जबरदस्त काम कर रहा है, बट जब नेशनल एक परव्यू आ जाएगा, आउटलुक आ जाएगा, तो ये रिपोर्ट कार्ड कैसे बीट करोगे जोरकर साहब? स्टेट में नो डाउट आप लोग। सर, इनके सभी आंकड़े झूठे हैं। ये चंदा मामा दूर के वाले हैं, 15 लाख अकाउंट वाले हैं, और तो जो टॉयलेट वगैरह की बातें हैं सब झूठी है, वो भी आपने देखा होगा। लेकिन आज की तारीख में मीडिया हमारे साथ नहीं है, और जो गोदी मीडिया, जो उनके मालिक उनके गोद में बैठे हैं, या तो उनकी जो इस प्रकार की चोपड़ी, उनके अलग अलग किताबें, बुक्स, जो क्राइम की बुक्स और गड़बड़ियों की ईडी की जो फाइल है, वो दिखा के इनके एजेंडे जो सेट हो रहे हैं, वही आप गाना उनका आप मतलब जो गा रहे वो आप हमको दिखा रहे सर। ये तो राम के नाम के भी चोरी कर रहे थे लोग सर। 2 करोड़ की जमीन सुबह 7:10 को सुल्तान अंसारी खरीदते हैं, वही जमीन 7:15 को राम मंदिर ट्रस्ट 16.5 करोड़ में खरीदता है। ये लोग राम के नाम की भी चंदे की चोरी करते हैं सर। ये लोग को आपने बताया कि इतनी सारी उपलब्धि की है सर। इन्होंने जो आज का जो रिकॉर्ड है, 23 करोड़ किसान लोग 375 रुपया भी प्रतिदिन नहीं कमा रहे सर। और किसान, ये लोग 80 करोड़ लोगों को अगर आपको 5 किलो का अनाज का खाना देना पड़ रहा है, तो ये तो सबसे 75 साल में ये तो सबसे हम लोग खराब हालत के ऊपर चले गए सर। और इतने बड़े मैंने आपको घोटाले दिखाए हैं कि 1 किलोमीटर रास्ते में अगर 250 किलोमीटर का खर्चा हो रहा है, तो ये जितने किलोमीटर के रास्ते आपने गिनाए, तो वो पैसे कहां गए, किसके अकाउंट में गए? अभी आइडिया ऐसी आ रही है सर कि ये सब पैसे घोटाले देख के, ये तो अपने सामने थोड़े मोटे आंकड़े आए हैं, जो नहीं आपके सामने और हमारे सामने आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े कितने लाखों करोड़ों में होंगे। क्योंकि ये जब ऐसे घोटाले होते हैं, उसके बाद ही ये लोग विपक्ष के एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर खरीदने के लिए पैसे वहीं से इकट्ठा आते हैं। इनके पैसे क्या मोदी जी, अमित शाह जी कोई नौकरी करके पैसे कमा के यहाँ ये काम नहीं हो रहा। ये सब ईडी, सीबीआई के माध्यम से लोगों को डराना, करप्शन करना, वही पैसा वापस डालना, फिर सत्ता लाना, फिर सत्ता में से करप्शन करना, ये लंबी चेन सर ये कर रहे हैं। और अभी जो मैं आपको बोल रहा था कि सर गरीबों के पैसे 26.51 लाख करोड़ रुपया टैक्स के माध्यम से इन्होंने जो जमा किया है, और अमीरों का 10.86 लाख करोड़ रुपया कर्जा राइट ऑफ किया है। मतलब गरीबों को लूट कर अमीरों की जेब भरने का काम इन्होंने किया है। ये गरीबों की पाकिट मार सरकार है सर, और ये सूट बूट और लूट की सरकार है। और ये तो आपने जो भी बताया साहब, मुद्दे, आप जो बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या लोग जो है मानेंगे जो आप बात कर रहे हैं? हो सकता है कि जो आप बात बोल रहे हो ठीक हो। जो आंकड़े आपने पेश किए हैं वो सीएजी की रिपोर्ट में है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोज आर नॉमिनल फिगर्स that this is what ought to have been there and this is what is there. अब इसके ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट के बाद ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद आगे इस पे और कोई इन्वेस्टिगेशन होती है नहीं होती मालूम नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में कांग्रेस और आपके जितने साथी गठ जितने भी हैं, क्या आप लोगों के पास इतनी उपलब्धियां हैं, इतने आपके पास टूल्स हैं कि आप इन सब चीजों को अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे? सर, इसी का इंटरप्रिटेशन ये है कि आप ये बात मान रहे हैं कि गलत हाथों में सभी संस्थाएं चली गई है। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि एक ईमानदार आदमी सभी प्रकार के घोटाले दिखाने के लिए भी सक्षम नहीं हो पा रहा, उसको मीडिया मदद नहीं कर रही है, ट्रांसपेरेंसी इनको नहीं चाहिए। और आपने जितने भी अभी गिनवाए कि वहां जाएगी यहां जाएगी, तो ये कहीं नहीं जाएगी। और सीएजी का कुछ भी नहीं होगा, इसमें से एक वो तो मैंडेटरी है सर। सर पीएससी के पास तो जाना मैंडेटरी है। सीएजी की रिपोर्ट जो होती है वो पीएससी के पास जाती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसको आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, घर घर आप कैसे पहुंचाएंगे, वो तो बताएं, वो तो आपके हाथ में है।
सर जितना हो सकता है हम लोग जाएंगे, और आप जैसे अच्छे लोगों के माध्यम से हम हमारा विचार रख रहे हैं, उसके माध्यम से भी हम हजारों लोगों तक अभी भी जा रहे हैं। उसके लिए तो आपको दुआ मिलने वाली है, पर हम लोग घर घर तक भी जाएंगे। हाँ हाँ, अभी और तक आपको ये भी बता दूं धनंजय जोनरकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक प्रदीप जी और मैं सिर्फ दुआ पे ही काम चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, अभी तक दुआ ही चल रही है। बिल्कुल। हाँ, अभी तक सिर्फ दुआ पे ही काम चल रहा है सर। हाँ बोलिए जी 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 बिल्कुल, जी जी बिल्कुल जी। सर, क्योंकि आपका जो बजट है, कांग्रेस का जो बजट होता है वो कहां जाता है? अब मुझे उन पत्रकारों के नाम गिनाने में मतलब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी जी बोलिए जोनकर साहब, बोलिए। सर आप लोग जैसे अच्छे व्यक्ति, और आप समाज में जिस प्रकार से आप लोग एक सच्चाई दिखाने की ताकत रखते हैं, उस प्रकार के लोग और बढ़ जाएंगे और उनकी संख्या बढ़ेगी, सच विवेक बुद्धि बढ़ेगी, तो बिल्कुल अच्छा विचार जाएगा। बाकी हम लोग को जो हमारे में शक्ति है, जो हमारी संगठन में है, वो लेके भगवान का नाम लेके हमको लोगों तक तो जाना ही जाना है। हम हमारा प्रयत्न करना हमारा है। अभी इसके पहले की डिबेट में जो हमारे आपके कुछ चौहान साहब आए थे, जो बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी ये हो गए वो हो गए, तो अच्छा है कि ये वो अपनी ही उस एक ख्याली पुलाव में वो रहे। हम ये चाहते हैं कि वो राहुल गांधी जी को जो पहले समझते थे वैसे समझते रहे, और हमको कोई नुकसान नहीं है। हम लोग को जो करने का हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं, और हमारे साथ पूरा देश की पूरी पार्टियां कर रही है। आपने जो हिसाब बताया था 38% वोट मिले और 62% वोट नहीं मिले, तो ये काउंट नहीं करना चाहिए थे, आपने बताया था। लेकिन सर आज की तारीख में 2% वोट 3% वोट भी अगर स्विंग हो जाते हैं तो 50 से लेकर 70 सीट्स के ऊपर परिणाम होता है। और हमको ऐसा अंदर से भी लग रहा है कि बीजेपी 100 सीटों तक भी नहीं जाएगी। यही वातावरण रहेगा लास्ट तक। लोग बिल्कुल समझ में आया लोगों को कि थाली कितनी महंगी हो गई, दूध कितना महंगा हो गया, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो गई, रोजगार नहीं मिल रहा, और ऑनलाइन के ऊपर भी काम करने के बाद बताया था कि जोनकर साहब देखिए, मणिपुर का जहां तक प्रश्न है, मणिपुर पे तो आप लोगों ने बहुत फोकस किया है, बहुत ध्यान आप लोगों का केंद्रित हुआ है, लेकिन हरियाणा के नूह में जो हुआ है वो भी तो बहुत दिल दहला देने वाली बात हुई है। वहां पर भी तो मतलब हालत खराब हुई है ना लोगों की, उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे? मणिपुर हरियाणा दोनों। सर बिल्कुल सर, मैं इसके लिए जो मैंने आपको मुनव्वर राणा साहब की जो बात में शुरुआत में मैंने कही, वो उसका ही मतलब है कि आज 30 से 32 लाख लोग मणिपुर में है, 2 लोकसभा की सीट है, 1 राज्यसभा की सीट है। उन लोग ये कवर नहीं कर पा रहे, बीजेपी के एक भी लाइव 1 घंटे के लिए भी उनको जाने की इच्छा नहीं हुई। हरियाणा में भी ये कर रहे हैं। ये मतलब मैं ये समझता हूँ सर इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि ये लोग अपने कर्म जो अभी आपने गिनाए थे 9 साल 23 साल जो भी है, उनके ऊपर इनका खुद का ही भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो इस प्रकार का ये सब गड़बड़ करने वाले, स्पॉन्सरशिप के प्रोग्राम के देने वाले यही लोग हैं जो मोदी सरकार में बैठे हैं। इनके अलग अलग नाम की संगठनाएं के ये जब करती है और पकड़े जाने के बाद ये लोग बोलेंगे कि इनका हमारा कोई संबंध नहीं है। वो कुरुलकर जिनको पकड़ा गया था, वो साइंटिस्ट का जो भी था आदमी, अभी तक उसके ऊपर देशद्रोह का कोई मुकदमा नहीं है। आप सोचिए इनके छोटे छोटे चीजों पे एसआईटी लगा के आप एक फॉर्मूला जो है, जो आपने अभी बोला कि 62% अगेंस्ट मोदी इज अ फॉर्मूला फॉर विनिंग। इंडिया के लिए वो सबसे बड़ा फॉर्मूला है, बिकॉज कांग्रेस ऑन इट्स ओन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट्स आपका 2009 में आया था। 2009 में आपको 29% वोट्स आए थे, तभी आपको 206 सीट मिला था इन रिसेंट पास्ट। तो ये 29% से ज्यादा 2014 में भी नहीं आया, 2019 में भी 20% स्टैग्नेंट था। बट ये 62% वोट्स अगेंस्ट मोदी इज अ बिग चैलेंज। आपको इस चैलेंज को स्वीकार करेगा तो जिस प्रकार से आपने आपका जितने लोगों का एक कार्यकर्ता का एक ख्वाब है कि राहुल गांधी जी 15 अगस्त 2024 में लाल किले से झंडा फहराएगा इंडिपेंडेंस, बट चीज दिख नहीं रहा है। जो 62% में केसीआर भी है, वाईएसआर भी है, आम आदमी पार्टी भी है, टीएमसी, हॉट कोल्ड छाव, धूप छाव, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट सीपीआईएम, तो ये सब है जो आपको बहुत संघर्ष करके जोड़ना पड़ेगा, ऑन द टेबल लेके आना पड़ेगा। 62% इज पॉसिबल। इंडिया अगर ये फॉर्मूला लेके चलते हैं, द वोट्स अगेंस्ट मोदी को कंसोलिडेट करना है, एक सक्सेसफुल फॉर्मूला हो सकता है, मगर इसमें संघर्ष बहुत है। जोनरकर साहब, इस संघर्ष को कैसे पार करोगे आप?
सर कांग्रेस ने हमेशा संघर्ष ही किया है, संघर्ष करके हमने ब्रिटिशों को यहाँ से भगा दिया है, तो इनको भगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यूनिटी, राजकारण में यूनिटी सबसे बड़ी है, कोशिश हम बिल्कुल उसकी करेंगे। पर लेकिन आप ये सब चीजों में आप एक छोटी सी चीज ये भूल रहे हैं कि आप मतदाताओं की बुद्धि के ऊपर आप शक कर रहे हैं। आप ये देखिए कि मतदाता बिल्कुल जागरूक है, और जितना आप समझते हैं कि उसको कुछ मालूम नहीं है, वो अनपढ़ है, वो गांवटी है, वो गांव का है, तो वो ही क्रांति करता है। वो बिल्कुल उठता है, लाइन में खड़ा रह के 3 घंटा भी खड़ा रह के वोट देता है, और वो सत्ता परिवर्तन करता है। और पूरे देश में आज जिस प्रकार के, अगर मैं खाली महाराष्ट्र का उदाहरण दूं सर, कि ये लोग ने अजीत दादा पवार के खिलाफ, ये जो शिवसेना के जो गठ गया था, उन्होंने कहा था कि ये फंड नहीं देते, इनका हिंदुत्व गलत है। आज उनके साथ डिप्यूटी सीएम बन के बैठे हैं। ये जो अपना नवाब मलिक जी के हिंदुत्व के लिए और खतरा बता रहे थे, दाऊद के लिए काम करने वाला बता रहे थे, व्यवहार उन्होंने बताया, उसको हसन मुशरीफ, भुजबल, अजीत पवार, तटकरे साहब, ये सब जाके उनको मिल के आए, फोटो वगैरह निकाल के आपने और सोशल मीडिया पे, न्यूज पे हमने देखा। क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाली है? ये छोटा सा उदाहरण आप महाराष्ट्र का देख रहे हैं, इसी प्रकार का उदाहरण पूरे देश में हर राज्य में जहां जहां इन्होंने ईडी सीबीआई का उपयोग करके किया है। तो आपको क्या लगता है कि वहां का मतदाता क्या न्यूज नहीं पढ़ रहा? आप जो जितने गोदी मीडिया थे वो चैनल लोगों ने देखना बंद कर दिया है। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आज की तारीख में जो न्यूज है उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी विश्वासार्हता, आज आप दोनों यहाँ बैठे हैं, तो आप दोनों जो चीज कहेंगे उसके ऊपर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, ना कि हजारों करोड़ का बड़ा बड़ा स्टूडियो लगा के जो बैठे हैं बड़े चैनल, उसके ऊपर 5 पैसे का भरोसा किसका नहीं है। प्रदीप नांदिया, राजू बजाज, जिनकी जितनी विश्वासार्हता है उतनी विश्वासार्हता आज जितने अपने आप को टीआरपी पे या 5-4 जो चैनल बड़े समझ रहे हैं, वो जीरो है आपके सामने। उसी प्रकार सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का विश्वास है, अच्छे न्यूज के ऊपर एक एक आदमी के 10-10 लाख फॉलोअर्स है, व्यूअर्स हैं, तो लोग वो देख रहे हैं और क्रांति आ रही है। अंडर करंट क्रांति इनको समझ में नहीं आ रही। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कभी इलेक्शन जाहिर हो और कभी हम अपने उंगली से बटन दबा के घर पे भेज दे इनको सब। राइट, थैंक यू सो मच सर। धनंजय जुनाकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत। हमारे साथ जुड़ने के लिए। डायनामाइट। हमेशा मजा आता है आपके साथ बात करके, जिस ऊर्जा के साथ आप बात करते हैं और कांग्रेस के लिए आप कितने उत्साहित हैं वो तो सुनने में मालूम पड़ जाता है। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद प्रेम कायम रहे। थैंक यू सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Right, and I hope he's right. I hope this is not a grave miscalculation. Of course, it's going to be very, very difficult to defeat Mr. Modi, but all the same, they don't have a choice but to try. They don't have a choice but to keep fighting, because if they don't fight, they're dead already anyway. So, 2009, they have got 29% vote share, sir. If they can at least come to that, as you said, it will be around 200 plus vote seats, 206 seats. I think the Congress will be very happy if they get even between 100 and 150. So, which means the India Alliance will be able to dent the BJP, and the BJP on its own may not get 272. That's the plan, I think. If they can get their own vote share back, that would be great. it will be That would be great for them. At the moment, let's ask our friend Mr. Anand Dubey from the Uddhav Thackeray Sena. Anand Dubey साहब, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। आपका हर हर कहना महादेव। वो टमाटर लेके जो किए थे बहुत हिट हो गए पूरे हिट देश हो में। गया साहब, हिट हो गया हर जगह पे। थैंक यू सर, थैंक यू हर सर, थैंक जगह यू सो पर। मच। वैसे वो टमाटर कहाँ से लाए थे? घर से लाए थे कि ऑफिस से? नहीं नहीं, घर में ही बैठा हूँ, तो घर में ही था, किचन से। टमाटर थे, तो मतलब यानी आपके घर में टमाटर थे। बहुत अब ईडी और सीबीआई की जांच, ईडी और सीबीआई की भेजा जाए कि ये 2 टमाटर कहाँ से आए। फौरन। अच्छा सर, आनंद दुबे साहब, चलिए वो गमछा तो मिलने वाला है नहीं अपने को, अरे लेकिन सर, फिर भी मैं ऑफिस कब आऊंगा, कब लेकिन मुझे ऑफिस बुलाया जाएगा? कल अभी इसी वक्त आइए, हम तो हैं यहाँ पे रात के 12 बजे तक। मैं सर कल आता हूँ, पक्का आता हूँ, आइए कल आता हूँ, कल आता हूँ। इट विल बी रियल प्लेजर सर। सो बट ये बताइए, आज आदरणीय सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब, आपके परम मित्र और आपके एक जमाने में लीडर भी हुआ करते थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी थे। आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, आपके अलायंस पार्टनर और आपके परम मित्र हुआ करते थे एक जमाने में। और अजीत दादा पवार, वो भी आपके परम मित्र थे और अलायंस पार्टनर थे और डिप्टी सीएम भी थे। आज तीनों के तीनों
शिरडी साई की मतलब का आशीर्वाद देने के लिए चले गए, ये क्या मतलब क्या माजरा है, जरा बताएं, जरा इस पर रोशनी डालें आनंद दुबे साहब। देखिए माजरा ये है, राजीव सर और प्रदीप सर आपको मेरा नमस्कार प्रणाम। माजरा ये है कि आज 1 साल हो गए इनकी सरकार को बना के, इन 1 सालों की विफलताओं का ढिंढोरा पीट रहे हैं। ये कुछ कर नहीं पाए हैं। इन्होंने एकनाथ शिंदे जी को उनके समर्थक के साथ लिया, उनके साथ जनता नहीं गई। इन्होंने अजीत दादा पवार और उनके समर्थकों को साथ में लिया, जनता उनके साथ नहीं गई। 105 सीट जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए देवेंद्र जी, वो उप मुख्यमंत्री हैं, ये उनके मन में पीड़ा है। तो ये जो पूरी सरकार 3 पार्टियों की बनी है, इनके पास सरकार में संख्या बल तो है लेकिन जनमानस का आशीर्वाद नहीं है। जिसके पास जनमानस का आशीर्वाद नहीं होता है वो जाकर ये दिखाता है कि भैया मेरे काम से आप कितने खुश हैं कि नहीं, बताइए बताइए, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं कि नहीं, मुझको आशीर्वाद दीजिए। तो ये आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री जी के नाम पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जगह जगह कि भाई मुख्यमंत्री साहब जनता से मिलने आएंगे और जनता के बीच में सभा लगाएंगे और जनता के साथ संवाद करेंगे। लेकिन ये सब डर से है। ये डर इसलिए है राजीव सर कि एक जमाने में नारा लगाने वाली एनडीए या बीजेपी कि अब की बार 400 पार, अब की बार 300 पार, उस एनडीए को 38 दलों का साथ लेना पड़ रहा है और दुर्भाग्य ऐसा कि उसमें से 32 से ज्यादा दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। तो ये डर है और डर अच्छा है कि कम से कम 2 महीना पहले तक 400 पार का नारा लगाने वाले आज ये सोच रहे हैं कि 220 के पार कैसे जाएं, 230 के पार कैसे जाएं। तो ये स्थिति इंडिया ने बना ली है। इसके लिए इंडिया के सभी 26 दलों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली मुंबई की बैठक के लिए उन सभी का स्वागत करता हूं। अब आगे आप प्रश्न पूछिए। आनंद दुबे जी, यहां पर हमारे बड़े परम मित्र देवेंद्र फडणवीस साहब ने यह कहा है कि हमारी फेस टू फेस सरकार है, फेसबुक सरकार नहीं है। अब इससे क्या तात्पर्य हुआ सर? उन्होंने इसका तात्पर्य इसलिए दिया कि जब कोरोना काल आया था और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के केंद्रीय मंत्रालय के ऑफिस में बैठकर फेसबुक के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडलों की बैठक लेते थे या देश के अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों को सिखाते थे या उनसे बातचीत करते थे या WHO या बहुत बड़े बड़े अस्पताल के डॉक्टरों से चर्चा करते थे, शायद देवेंद्र जी ने उस संदर्भ में कहा है क्या कि प्रधानमंत्री जी कहीं निकल नहीं पाए, उन्होंने बंद कमरे में बैठकर ही पूरे कोविड प्रशासन का कार्यभार देखा। तो शायद मुझे लगता है उन्होंने उनकी चर्चा की क्या, मैं इसके बारे में ज्यादा जानता नहीं। दुबे जी, एक चीज है कि मोदी जी ने कहा कि मैं वापस आऊंगा लाल किला से 2024 में झंडा वंदन करूंगा इंडिपेंडेंस डे का, और उन्होंने कहा जब तक मैं यहां पर हूं मैं खत्म करूंगा परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इस तीन चीजों को टोटल फिनिश कर दूंगा। मगर इसके फिनिश के लिए 2 बड़ा टारगेट है कि अगर 300 पार है, 303 या 330 पार करना है। उत्तर प्रदेश में 100%, 80 के 80 मैक्सिमम निकलना पड़ेगा, और महाराष्ट्र में टारगेट है 45 सीट बीजेपी का, 45 आउट ऑफ 48। तो ये तब संभव है कि उद्धव जी साथ में आए या शरद पवार साहब साथ में आए, वो दोनों साथ में आने का कोई मूड नहीं है। तो ये कैसे उनका गणित वो पूरा करेगा? डुबे जी क्या लग रहा है? बिकॉज आई थिंक अजित पवार जी का बार बार मीटिंग हो रहा है शरद पवार जी के पास, बोले कि आप रिटायरमेंट ले लो, आप मार्गदर्शन मंडल में चले जाओ। तो क्या ये हासिल होगा 45 आउट ऑफ 48 जो सपने बीजेपी देख रहा है यहां महाराष्ट्र में, क्या डुबे जी पूरा होगा? प्रधानमंत्री जी के पास आत्मविश्वास तो है, लेकिन एक कहावत है कि आपके पास आत्मविश्वास तो होना चाहिए लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। उन्हीं के पार्टी के नेता है देवेंद्र फडणवीस जी, वो भी कहते रहे हैं मैं पुनः आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन आज तक वेटिंग इन सीएम की लाइन में वो खड़े हैं। तो मोदी साहब आत्मविश्वास तो अच्छा है लेकिन अति आत्मविश्वास अच्छा नहीं है। मोदी साहब ने दूसरी बात परिवारवाद और भ्रष्टाचार की। मोदी साहब
इन 9 वर्षों के पहले 2014 में आपकी सरकार ही बनी थी इस मुद्दे पर कि आप इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचारियों को खत्म कर देंगे। लेकिन हम सबको ये नहीं पता था कि जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हैं या आरोप लगाते हैं, उनको आप अपने पास मिला के उनका पुराना इतिहास खत्म कर देंगे। ये हमें नहीं पता था। तो आप भ्रष्टाचार पे बोल नहीं सकते। परिवारवाद, आप परिवारवाद की बात करते हैं। आपकी पार्टी में अब तक कितने नेताओं का मैं नाम गिनाऊं? अनुराग ठाकुर जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, पीयूष गोयल जी, अनुप्रिया पटेल जी, पंकजा मुंडे जी, पूनम महाजन जी, पंकज सिंह जी, नितेश राणे जी, ऐसे तमाम नाम है जो कि आपके परिवारवाद के गोद में बैठे हैं, लेकिन आपको उनका परिवारवाद दिखाई नहीं देता। तीसरी बात, वो दो महाराष्ट्र में कैसे आएंगे? अब आप सोचिए कि महाराष्ट्र में 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, 28% मतदान बीजेपी को हुआ, 19% मतदान शिवसेना को हुआ, 16% मतदान और 11% मतदान एनसीपी और कांग्रेस को हुआ। अब अगर 28 को बगल में रख दे और बाकी सब इकट्ठे हो जाएं, तो इसका मतलब 70% के करीब तो मतदान इंडिया के पास है। तो जब 70% मतदान इंडिया के पास है, तो जो 48 में से 41 सीट आप पाए थे, वो तो आप पाएंगे नहीं। आप तो 10-12 सीटों से ज्यादा नहीं पाएंगे। तो ये चिंता के कारण 10-12 सीटें भी आएंगी जी, 10-12 सीटें इसलिए आएंगी क्योंकि बीजेपी के पास उनके खुद के एक वोट बैंक है। और मैं स्वस्थ राजनीति में विश्वास रखता हूं, मैं नकारात्मक बात नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी को 8-10 सीटें, 12 सीटें आ सकती है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान साहब ने तो अभी ये भी कहा है कि आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, वो भी काफी नाराज है भारतीय जनता पार्टी की हरकतों से। आरएसएस ने क्लियर कह दिया है कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे आप नहीं जीत पाएंगे। उसका कारण है कि इन 9-10 वर्षों में जो जो बातों को लेकर ये जनता के बीच में आए थे, उसमें से बहुत कम ही काम कर पाए हैं। ज्यादा विषयों पर इन्होंने सफलता हासिल नहीं की है। तो आरएसएस तो इनका आधार स्तंभ है। भारतीय जनता के पार्टी के पीछे जो सोच है वो आरएसएस की काम करती है। तो जब सोच कह रही है कि नहीं भाई ये चेहरा अब नहीं चलेगा, तो मैं समझता हूं कि आरएसएस तो बहुत सम्मानजनक विचारक है। अगर वो ऐसा सोचती है तो हम भी उनके समर्थन में खड़े हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, दूसरी चीज ये बताइए कि जहां तक के लोगों का प्रश्न है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उद्धव ठाकरे जी की बात करें, हो सकता है कि लोगों के बीच में, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज वी बीन अमंग द पीपल, हम लोग लोगों के बीच में ही रहते हैं ज्यादातर, प्रदीप जी और मैं, और हमारे जितने भी स्टाफ के लोग हैं सब लोगों के बीच में रहते हैं। जब तक एकनाथ शिंदे जी छोड़ करके गए उद्धव ठाकरे जी को, तब तक लोगों में असमंजस की स्थिति थी। वेरी फ्रैंकली आपको बोल रहा हूं, आपको शायद बुरा लगे, असमंजस की स्थिति थी कि यार ये क्या है, शिवसेना कैसे जुड़ गई। हर एक कोई ब्लेम कर रहा था उद्धव जी को ही कि उद्धव जी आप अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए, कैसे नेता हैं आप, क्या है, इतने ज्यादा लोग छोड़ के चले गए, आपको मालूम तक नहीं था, कैसे मुख्यमंत्री हैं आप, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब आपका इलेक्शन सिंबल, आपका सिंबल जो है शिव धनुष बाण और शिवसेना नाम जो है वो भी एकनाथ शिंदे जी को दे दिया गया, उसके बाद लोगों में बहुत गुस्सा पैदा हुआ है कि ये क्या हो गया। तो क्या वो गुस्सा अभी तक कायम है आनंद दुबे जी? वो गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप हमारी पार्टी से टूटे, आप हमारी विचारधारा से अलग हैं, आप जाइए, आपका स्वागत है, आप जहां जाना चाहें जाइए। लेकिन ये कहना कि ये पार्टी ही हमने बनाई है, इस पार्टी को हमने सींचा है अपने खून पसीने से, ये कहना बहुत गलत है। और आदरणीय शरद पवार साहब ने जो आज बीड़ की सभा में कहा है ना कि आजकल ईडी तय करती है केंद्र सरकार के माध्यम से कि कौन सा नेता कब बीजेपी में जाएगा, उसी प्रकार मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन भी देखिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार के अधीन तो नहीं हो गया। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन का काम था ये चेक करना कि पार्टी किसके साथ है और लेजिस्लेचर किसके साथ है। ठीक है, लेजिस्लेचर में एकनाथ शिंदे के पास संख्या बल है, लेकिन पार्टी में तो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता आज भी शिवसेना में है ना। लेकिन आपने हमारी पार्टी का सिंबल और नाम उनको दे दिया। तो ये जो दोहरापन की नीति इलेक्शन कमीशन ने निभाई है ना, लोग इससे भी बहुत नाराज हैं। लेकिन लोग मजबूर हैं क्योंकि सामने कोई चुनाव नहीं है। जिस दिन भी कोई चुनाव होगा, लिटमस टेस्ट हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। I would like to ask you this question. मैं आपसे जानना चाहता हूं, because forget the fact that you are from the उद्धव ठाकरे सेना at the moment. एक मिनट के लिए उसको भूल जाइए आप, ठीक है साहब? आप राजनीति में हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और विश्लेषक भी हैं।
How can the election commission, this is something which I can't understand. मैंने हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से भी बात करी है, जितने भी संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, इलेक्शन लॉ के जो जानने वाले हैं, हर एक से हम लोगों ने बात करी है कि भाई हाउ डू यू डिटर्मिन कि पार्टी का सिंबल किसके पास रहेगा? इज इट ओनली बेस्ड ऑन द लेजिस्लेटिव पार्टी और इज इट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु आर स्टिल विद दैट पार्टी? द लेजिस्लेटर्स डू नॉट मेक अ पार्टी. फॉर एग्जाम्पल, शिवसेना को 10 साल लग गए थे अपना पहला कॉर्पोरेटर इलेक्ट करने के पहले. इसका मतलब उसके पहले शिवसेना नहीं थी क्या? आनंद दुबे जी, बहुत सही आपने प्रश्न उठाया है. देश की जनता को बड़े गंभीरता से सुनना चाहिए. मान लीजिए किसी पार्टी में 15 विधायक चुन के आए जी, उसमें से 13 विधायक उस पार्टी को छोड़कर चले गए और बच गए 2 विधायक. और वो जो 13 लोग गए हैं वो ये कहें कि ये पार्टी ही हमारी है क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, जबकि वो जो 2 विधायक है उसके पास संगठन का नेतृत्व है, करोड़ों कार्यकर्ता उसके पास है. तो आप किसका साथ देंगे? आपको संगठन का साथ देना होगा. लेकिन इस हमारे केस में उन्होंने संख्या बल देखा कि एमपी एमएलए किसके साथ है. तो भाई एमपी एमएलए आपके साथ है और संगठन आपके साथ नहीं है तो आपको सिंबल और नाम नहीं मिल सकता. आपको स्वतंत्रता मिल सकती है कि आप अपात्र नहीं होंगे, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे. ये इलेक्शन कमीशन कर सकता है, लेकिन पार्टी ही आपकी है, ये चुनाव चिन्ह ही आपका है. यह जीवन भर चुनाव आयोग पर एक धब्बा है और इसको वो धो नहीं सकते जब तक वो इस बाजी को पलट नहीं देंगे. उन्हें एक न एक दिन सुप्रीम कोर्ट में हारना होगा और हमें विश्वास है आदरणीय महामहिम सुप्रीम कोर्ट एक दिन हमें हमारी पार्टी का नाम और सिंबल भी देगा. और शरद पवार जी ने यहाँ पर बोला है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल है उसको भी काफी खतरा है. लग उनको ऐसा रहा है. आपको लग रहा है कि कोई ऐसी प्लानिंग भी है कि अब शरद पवार जी मतलब एनसीपी भी उधर चले जाए और चावल का एक दाना छूकर व्यक्ति बता देता है कि चावल कैसा पक रहा है. जब शिवसेना के साथ आपने ऐसा किया तो क्या आप एनसीपी को छोड़ेंगे? जब आपने साम दाम दंड भेद की राजनीति को अब हथियार बना लिया है तो आप विरोधकों को छोड़ेंगे? इतनी दया भावना आप दिखाएंगे ऐसी हमें उम्मीद नहीं है. What a motorcade, Pradeep ji, hang on a minute. What a motorcade for Sharad Pawar ji. 700 गाड़ियां थी यार बीड़ के पास, मतलब huge. This should really worry the BJP. Very frankly speaking, if I was in the BJP, if I was advising the BJP, I would be worried. I would be really worried. राजू सर एक गाना है हिंदी पिक्चर का जी, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा हीरो इधर है. उसी प्रकार बीजेपी तुम्हारा ध्यान किधर है, जनता तो शरद पवार साहब के इधर है. वो जिनको लेके घूम रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है. दुबे जी उत्तर सभा उन्होंने कहा है, मुंडे जी, अजीत पवार सब मिलके उत्तर सभा वहीं पर रखने वाले, दिखाने वाले कि शरद पवार जी. अब आप सोचिए प्रदीप सर, एक 83 साल के बुजुर्ग को जिनको आप लोग अपना आइडल कहते हैं, अपना भगवान कहते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ उत्तर सभा लेके आ रहे हैं. इतनी राजनीति में गिरावट केवल और केवल बीजेपी ला सकती है, हम लोगों के बस का नहीं है. आप लोगों ने 30-40 सालों से पत्रकारिता देखी है, ऐसी कभी भी कमी नहीं आई थी सोच और विचार में जो बीजेपी के पास अकाल पड़ा हुआ है इस समय सोच और विचार का. और मैं समझता हूं कि आने वाले 24 के बाद हम इस सोच को खत्म करेंगे और वही सोच जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की थी, इंदिरा गांधी जी की थी, राजीव गांधी जी की थी, उसी सोच को वापस लाना होगा, अन्यथा देश किसी और दिशा में न निकल पड़े. दुबे जी, राज ठाकरे जी जबरदस्त सभा कोंकण में जिस प्रकार से हावी हो गए, कहा कि उन्होंने सभा बीच में पनवेल में लिए, रोड के खराब स्थिति, पॉट होल्स के खराब स्थिति, टोल नाकाज में जिस प्रकार से तकलीफ है लोगों को, उस चीज का टोल हटाओ. तो इस चीज का कैसे देखते हो? कोंकण में जबरदस्त कंसंट्रेशन है राज ठाकरे जी का. उन्होंने कहा कि मुंबई गोवा हाईवे मुझे इतने टाइम के अंदर ठीक होना चाहिए और पूरे मनसे के कार्यकर्ताओं को किया. और सुनिए ना, तो इसको आप कैसे, और उन्होंने आगे जाके एक चीज कहा कि जो 50 कोके चलाने वाले हैं उनके पास तो कंटेनर है, बड़े बड़े कंटेनर. राज ठाकरे जी का कहना है. डोबे जी, हाउ डू यू सी, क्या ये डेंट होगा? उद्धव सेना के वोट्स को डेंट करेंगे राज ठाकरे जी? देखिए ऐसा है
कि राज ठाकरे जी एक बड़े नेता हैं, हमारी पार्टी के विरोधक हैं, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, तो हमारे सम्मान में कलमे तो नहीं पढ़ेंगे, कविताएं तो नहीं करेंगे, वो हम पर कटाक्ष करेंगे, हमारी बुराई करेंगे। ये जनता को पता है और महाराष्ट्र की जनता बहुत भावुक है, वो ये सब जानती है। राज ठाकरे साहब, आपकी पार्टी को एक बार लोगों ने नासिक में मौका दिया, क्योंकि आपके भाषण से लोग प्रभावित होते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, लोगों को लगा यार यह व्यक्ति जरूर कोई न कोई बदलाव करेगा। आपको पूर्ण बहुमत दिया। आज क्या हासिल किया आपने? यदि आप अच्छा काम करेंगे प्रदीप जी, तो आपको 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार लोग चुन के भेजेंगे। मुंबई महानगर पालिका में यदि हमारी शिवसेना ने अच्छा काम नहीं किया होता, तो आपको लगता है कि 27-28 वर्षों से हमें चुन के देंगे? हमें चुन के देंगे? आनंद दुबे जी, the footage running right now is that from बीड। वो बीड की फुटेज है सर। शरद पवार जी के साथ 700 गाड़ियां थी, 700 कार्स। ओह गॉड, दिस इज अमेजिंग। जी आनंद दुबे जी, आप कुछ बोल रहे थे। अब आप सोचिए कि एक बार अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें कोई चुन के नहीं देगा। राज ठाकरे साहब, आपने अगर नासिक में अच्छा काम किया होता तो अब तक 2023 तक आपकी सरकार रहती, लेकिन कहीं न कहीं आप में कमी रह गई होगी, तब नासिक की जनता ने आपको नकारा और दूसरा विकल्प चुना। उसी प्रकार अगर मुंबई से गोवा की सड़कों की बात करें साहब, तो इसमें केंद्र सरकारें बदल गई, राज्य सरकारें बदल गई, कई बार बीजेपी, हमारी शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, देश में कांग्रेस, देश में बीजेपी, ये सामूहिक दायित्व है। सबको बड़े सम्मान के साथ जनता के सामने शीश झुकाकर क्षमा मांगना चाहिए कि हाँ, हमसे गलती हुई। जिस सड़क को 3-4 साल में बन जाना चाहिए था, वो 15 वर्षों में नहीं बन पाया, तो ये हमारी कमी है। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र में यदि आप क्षमा मांगते हैं तो जनता आपको क्षमा कर देती है। लेकिन दूसरी बात इससे आप एक बड़े चीज ही और बनते भी हैं, है आनंद छोटे दुबे नहीं साहब। बनते जी। आनंद दुबे साहब, 15,556 करोड़ की ये हाईवे बनी है। 15,556, दिस इज द फिगर, दिस इज द ऑफिशियल फिगर। और उसका हाल क्या है आप देख सकते हैं, नंबर 1। लेकिन ये क्या बात है, ये छोटी सी बात आपसे जानना चाह रहा हूं सर। 95 to 99 आपकी सरकार थी, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस वक्त कोई 43 के करीब फ्लाईओवर बने मुंबई शहर में। मुंबई पुणे महामार्ग भी बन गया। जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है उसका फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया गया, उस पर काम शुरू हुआ। वो बांद्रा वर्ली सी लिंक बनने में 11 साल के ऊपर लग गए। इट टुक 11 years फॉर दैट बांद्रा वर्ली सी लिंक टू बी मेड। ये क्या होता है कि मतलब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कई पार्टीज जब पावर में आती हैं तो हर एक काम जो है वो बहुत धीमा हो जाता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। वाई आनंद दुबे साहब? देखिए, जब 95 में बाला साहब ठाकरे जी के मार्गदर्शन में एनडीए की सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, तो नितिन गडकरी जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। बाला साहब ठाकरे जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। बहुत कम समय में, कम खर्चों में वो बना। नितिन गडकरी जी उसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन जब नेतृत्व कौन करता है और वो अगर असफल होता है या उसकी विचार कम पड़ते हैं, तभी बहुत सारी कमियां आती हैं। आप देखिए कि कैग की रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले, सीएजी की रिपोर्ट जी आई है। दिल्ली में द्वारिका एक्सप्रेस नाम का एक 29 किलोमीटर का सड़क है, जिसकी लागत थी 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। जी। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो 250 करोड़ रुपया पर किलोमीटर से बन रहा है जी। मतलब 14%, 14% बढ़ोतरी। मतलब 2 गुना सुना था, 4 गुना सुना था, 10 गुना सुना, 14 गुना उसके कॉस्ट में बढ़ोतरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये नितिन गडकरी साहब एक अच्छे नेता है, मैं उनके बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उनका नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, आपको भी जिम्मेदारी उठानी होगी। आपको भी यह बोलना होगा कि कहां भ्रष्टाचार हो गया, किन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। और उसके बाद जो एनएचएआई मिनिस्ट्री है, मतलब सड़क परिवहन मंत्रालय, वो कैग को झूठा ठहरा रहा है। वो कह रहा है कैग की रिपोर्ट गलत है। नहीं भैया, इतना ही होना था, कैग ऐसा बता रहा है। मतलब आप में समन्वय नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रोड बननी थी 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पर, वो 250 रुपए पर किलोमीटर पे बनी, यानी 238 करोड़ रुपए पर किलोमीटर ज्यादा खर्चा हुआ। उसको अगर 29 से मल्टीप्लाई करें प्रदीप जी,
तो चंद्रयान- it works out to 6,920 odd crores. चंद्रयान मतलब चंद्रयान कोई उस पर 4 के 5 चंद्रयान बना सकते हैं. बना सकते हैं। फैंटास्टिक. चंद्रयान सस्ता है। मतलब ये रोड कौन सी बन रही है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा. मतलब नहीं, चांदी नहीं, तो ये- चांदी नहीं, तो सोने ये- की रोड बन रही होगी. नहीं नहीं, अब तक क्या था राजीव सर कि नितिन गडकरी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो अखबारों के माध्यम से, जी। विचारकों के माध्यम से सुगबुगाहट है कि गडकरी साहब भी कहीं प्रधानमंत्री जी के उम्मीदवार तो नहीं हो जाए भविष्य में, तो कैसे उनके डिपार्टमेंट को भी बदनाम किया जाए, कैसे उन पर भी आरोप लगाए जाए. तो मैं समझता हूं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी लेवल पर जा सकती है. जिस प्रकार आदरणीय शरद पवार साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को केवल चुनाव जीतना है. एक जमाना था कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही. आज वो पार्टी कह रही है कि नहीं, हमें चुनाव जीतना है चाहे कैसे भी. उसके लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अपने ही नेताओं को भ्रष्ट बता देना पड़े, अपने ही नेताओं को बदनाम करना पड़े, चलेगा. तो हमें दुख तब होता है कि ये कैसी पार्टी है. 30 साल हम इनके साथ रहे, इन्होंने हमारी पार्टी तोड़वा दी. शरद आनंद पवार दुबे जी- साहब की पार्टी तोड़वा दी. जी. आदित्य ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे ने बहुत जबरदस्त बीच में एक चीज को उजागर किया ना कि जो टोल नाका है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वो टोल नाका हटना चाहिए. बिकॉज रोड खराब है और डबल टैक्सेशन. लोगों से 2 बार, एक टोल टैक्स भी ले रहे हैं और बीएमसी की तरफ से रोड टैक्स भी ले रहे हैं. रोड टैक्स, टोल टैक्स, यानी यहाँ के लोग, मुंबई के लोग डबल पेमेंट कर रहे हैं और सुविधा है ही नहीं. पॉट होल्स भरा हुआ है पूरे मुंबई, महाराष्ट्र में हर रोड पॉट होल से भरा हुआ है. तो ये एक सही स्टेप था और सरकार को सोचना चाहिए. मगर राज ठाकरे जी का कहना और एमएनएस का कहना है कि अभी कहां से उजागर हो गए. राज ठाकरे जी एनवायरमेंट मिनिस्टर, हर चीज, बड़े बड़े पोर्टफोलियोज एमवीए सरकार में भी थे. बीएमसी वाज रूलिंग दिस, शिवसेना वाज रूलिंग बीएमसी. तो तभी क्यों नहीं, अभी क्यों? तो ये सब अभी अचानक ये सब याद कहां से आया? अचानक नहीं, तो आलोचना कर रहे. अचानक. आप अच्छी सड़क बनाइए, आप 3 गुना टोल लीजिए, मुंबई की जनता देती है. वर्ली सीलिंग पर 100 रुपए के करीब टोल है, लोग खुशी खुशी देकर जाते हैं. क्यों? उन्हें पता है कि हम माहिम होते हुए, दादर होते हुए अगर हम वर्ली जाएंगे तो हमें समय ज्यादा लगेगा और वर्ली सीलिंग से जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे. उसी प्रकार अगर आपको कांदीवली से मीरा रोड जाना है तो आपको पता है कि बीच में दहीसर का टोल आएगा, हम टोल भर देंगे, सड़क अच्छी होगी तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे. आपको भांडुप से मुलुंड होते हुए थाना जाना है, आपको पता है सड़क अच्छी होगी, हम टोल भर देंगे. आपको मानखुर्द से वाशी होते हुए न्यू बॉम्बे की तरफ जाना है, आप पैसा भर के जाना चाहेंगे. लेकिन अगर वो सड़क खराब है और उस सड़क को कॉन्ट्रैक्टरों ने दुरुस्त नहीं किया है, तब आपको टोल लेने का कोई अधिकार नहीं. यही बात आदित्य ठाकरे जी ने कही है कि आप टोल तब लीजिए जब आप सड़कों को अच्छा बनाइए, अन्यथा ये टोल बंद कर दीजिए. टोल की कोई आवश्यकता नहीं है. अब पिछले 1.5-2 वर्षों से हमारी मुंबई महानगर पालिका में सत्ता नहीं है, राज्य सरकार में 1 साल से हमारी सत्ता नहीं है, केंद्र सरकार में तो पिछले कई वर्षों से हमारी सत्ता नहीं है. तो यदि हमारी सत्ता नहीं है, हमें फ्रंट पे खेलने के लिए बैट बॉल ही नहीं मिला है, तो हम तो, आप अगर खराब खेलेंगे तो आपको हटाने की बात करेंगे ना. आप हमें बैट बॉल दीजिए, हम छक्के पे छक्का मारेंगे. तो यही बात हम लोग कहना चाहते हैं कि आप अच्छी सड़कें बनाइए, आप तिगुना टैक्स लीजिए, लोग खुशी खुशी देंगे, क्योंकि मुंबई की जनता को आराम पसंद है, वो सहूलियत के लिए पैसा देगा. लेकिन आप अगर पैसा लेंगे और काम नहीं करेंगे तो 1 रुपया भी मुंबई की जनता आपको देने वाली नहीं. आनंद दुबे जी, यहाँ पर दूसरी चीज ये आती है, दूसरी चीज जो आती है वो जरा वो है कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही है. दिस इज नो डाउट. कांग्रेस भी यही बोलती है, उद्धव ठाकरे सेना जो है यानी शिवसेना, वो भी यही बोलती है कि भाई हम लोग इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे. लेकिन शरद पवार जी के संदर्भ में बार बार क्यों सवाल उठता है? क्यों कि अजीत दादा पवार उनसे बार बार मिल रहे हैं, अलग अलग लोग उनसे बार बार मिल रहे हैं. तो क्या अब बीड़ की मीटिंग के बाद वो सवाल अब सब खत्म हो गए, जो बीड़ में जो उन्होंने अभी सवाल ली उसके बाद? कोई भी सवाल खड़ा करने के पीछे एक कारण होता है. पिछले 1.5 महीनों से 5 बार शरद पवार जी से अजीत पवार जी की मुलाकात हुई.
जी। कुछ मुलाकातें बंद कमरे घर में हुई और कुछ मुलाकातें भरे मंच पर हुई। हमने सामना के माध्यम से एक निवेदन किया कि पवार साहब, आप हमारे महागठबंधन के आधार स्तंभ हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारे नेता हैं। यदि आपसे बार बार अजीत पवार मिलेंगे तो इस महागठबंधन या इस इंडिया को कहीं ना कहीं कमजोरी होगी। तो आप हमारी सलाह मानिए कि थोड़ी उनसे दूरी बनाइए और अपने साफ साफ अपना स्पष्टीकरण दीजिए। उन्होंने उस बात को स्वीकारा। कल उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पूरी तरह महागठबंधन के साथ हूं, इंडिया के साथ हूं, मैं कहीं जाने वाला नहीं, बीजेपी के विचारकों से मैं बहुत दूर हूं। आज बीड़ में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो ईडी है उसका दुरुपयोग करके केंद्र सरकार अपने विरोधियों को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। तो शरद पवार साहब ने अपनी स्थिति साफ की और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि लोकतंत्र में यदि उनका कोई साथी मित्र पक्ष उन्हें कोई निवेदन करे या सलाह दे तो वो सुनते हैं। भाजपा की तरह नहीं है कि 38 दलों का गठबंधन तो बना लिया लेकिन हैसियत किसी को नहीं दी। न किसी के पास एमपी एमएलए हैं, न किसी के पास कोई ताकत है, बस खाली एक झुंड बना लिया है, एक भीड़ की टोली बना ली है और इंडिया को खत्म करने निकले हैं। ऐसे नहीं होता है हमारे यहाँ तो लोकतंत्र। आपके मुताबिक सर, चलते चलते वन फाइनल क्वेश्चन टू यू, आपके मुताबिक अगर लोकसभा की पहले बात कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल बीएमसी के चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं या नवी मुंबई के चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं, टीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक द कैलकुलेशंस आर स्टिल राइट एज फार एज द बीजेपी इज कंसर्न। सो हाउ मेनी सीट्स आर यू गोइंग टू विन सर इन द लोकसभा इलेक्शंस? 38 सीट, 38 इंडिया 38 सीट जीतेगी, ये मेरा आत्मविश्वास है, दृढ़ संकल्प है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने अपना अगला कार्यक्रम हिंगोली के लिए जाहिर कर दिया है 27 अगस्त को। बहुत भरी तादाद में वहां की जनता उन्हें सुनने आ रही है और सबको विश्वास है कि आज एनडीए को कोई कड़ी टक्कर दे सकता है तो इंडिया दे सकती है। और महाराष्ट्र में शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी, हमारे साहब की शिवसेना और कांग्रेस, ये तीनों दल जब तक इकट्ठे हैं 38 से ज्यादा ही सीटें हम पाएंगे, कम नहीं। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आनंद दुबे जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। और कल आप आ रहे हैं हमारे ऑफिस? मैं बिल्कुल आऊंगा, अभी मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, Thank you. वंडरफुल। राइट, सो दैट मीन्स प्रदीप जी, बिल्कुल सर, if they actually get 38 out of 48, say even if they get 35 out of 48, that really overturns the entire calculation Apple cart of the BJP. of the BJP. Bilkul, sir. That'll be terrible. All right, we'll discuss that in just a moment. But before that, let's get our old friend Mr. Ketan Naik of the Maharashtra Navnirman Sena with us. Ketan Naik साहब, नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप किसी रेस्टोरेंट में, मैंने सुना, आई एम सो सॉरी, वी पुल्ड यू हाँ आउट। सर, क्या खा रहे थे सर, क्या खा रहे थे? हमारे साथ सर भी कुछ शेयर खा नहीं करो। रहा हूँ, मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो चुकी है तो मैं एक जगह बैठ के आपसे बात करने के लिए रुका हूँ। क्या बात है साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। सर ये तो बताएं कि आखिर में बीएसटी का जो था उसमें क्या हुआ, क्या कुड यू प्लीज टेल अस व्हाट हैपेंड ओवर देयर सर? उसके बाद मुंबई गोवा हाईवे जो है उसके बारे में भी बात कर लेंगे, लेकिन जो बीएसटी की जो स्ट्राइक है वो खत्म हो गई, उसमें क्या हुआ? क्या आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, या आपकी जंग जारी है लोगों के लिए? कितना सर धोखा हो गया, धोखा हो गया जी? जी कैसे हुआ धोखा सर, BST बताएं। के जो वर्कर्स थे बहुत बड़ी संख्या में वो रास्ते पे उतरे, उन्होंने बीएसटी की स्ट्राइक कर दी, बहुत सारे बस रूट बंद हो गए, डेपोज बंद हो गए और इवेंचुअली पता ऐसे चला कि बीएसटी की जो सिंधेगढ़, मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है, उनकी जो यूनियन है, उनकी यूनियन ने इस संप को खारिज करवाया, ये बंद जो था उसको बंद करवाया। कुछ मांगे लोगों की पूरी कर दी गई है ऐसा उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन अस्तित्व में कोई भी मांग पूरी नहीं की गई, कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट उसमें बना नहीं, बहुत सारे वर्कर्स के ऊपर कार्रवाई हो गई और हाथ में कुछ भी लगा नहीं। तो बीएसपी का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो प्रोटेस्ट एक तरह से सर फेल हो गया। हमारे तरफ से, एमएनएस के तरफ से वर्कर्स को कमिटमेंट थी कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई हम होने नहीं देंगे। तो आज ही हमने बहुत सारे वर्कर जिन पे कार्रवाई की गई थी उनको वापस काम पे हम लोगों ने ज्वाइन करवा चुके हैं हम लोग, और उनकी जो मैंने जैसे कमिटमेंट दी थी कि समान काम समान वेतन उनको मिले,
इसकी हम जो एक पिटीशन फाइल करने वाले थे, उसका जो प्राइमरी लेटर जो देना होता है वो भी हम लोग बीएसपी और सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी है उनको दे चुका है। This is terrible. Pradeep ji, this is absolutely terrible. What is बट happening? केदारनाथ जी, जो एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इन्होंने लागू किया है, ऑन द लॉन्ग टर्म इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, जो भी ऑक्यूपेशन में आ जाते हैं। एक परमानेंट आपका यही था कि परमानेंट वही पोस्ट का टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम में क्रिएट किया है। आधा पगार भी नहीं दे रहे हो, तो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ये सरकार, और ये सरकार का कहना है की गोड गरिबांची सरकार है, कष्टकऱ्यांची सरकार है, जो किसान, तो हाउ डू थिंक कॉन्ट्रडिक्शन है सरकार का बोलने में और करनी में, बहुत फर्क दिख रहा है। हाउ डू यू सी इट? उस दिन आपने बहुत अच्छी बात कही थी, आपने कहा था कि अगर ये सरकार गरीबों की सरकार है तो एडहॉक पद्धति से वर्कर्स को कुछ तो उन्होंने देना चाहिए, एडिशनल सैलरी देनी चाहिए या कुछ देना चाहिए। हमने ये भी डिमांड उनके सामने रखी कि अगर आप अभी के अभी कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनवा दीजिए कि हम लोग जैसे रोड बनाते हैं एडहॉक पद्धति से, उसी तरीके से एक एडहॉक फंड क्रिएट किया जाएगा और उस फंड में से वर्कर को आने वाले समय में चीजें दे देंगे। लेकिन ये भी इनसे बन नहीं पड़ा। तो ये सब बोलने की बात है सर कि गरीबों की सरकार है और ये है वो है, इनको बस सत्ता में रहना था, इसके लिए बनी हुई सरकार है और कोई सरकार है नहीं। तो राज साहब ने मुंबई से गोवा दोनों कहा कि महामार्ग हाईवे से पूरे मन से कार्यकर्ताओं से कहा, लीडर से कहा कि इसको आंदोलन के रूप से करना है और यहां से शुरू करके अपने को पूरे महाराष्ट्र में जितने भी रोड खराब है उस चीज को हाईलाइट करना है, टोल नाका को कंट्रोल, जिस प्रकार से बिना मतलब के टोल नाका उसको खत्म। तो हाउ इज दिस कैंपेन केतन जी, कैसे आगे बढ़ रहा है? बिकॉज जबरदस्त सपोर्ट मिला है और पूरे कोंकण का क्षेत्र में, कोंकण महामार्ग राइट टिल गोवा, एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड कि मन से कुछ ना कुछ करेगा और इससे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। जो दिल्ली कमीशन है, आगे जाना, हाईवेज को घूमना फिरना, रोड इतना खराब है, तो राज साहब का आदेश कैसे मन से फुलफिल करेगा? मैं सुना कुछ रोड के ऑफिस, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऑफिस में तोड़फोड़ भी हो गया, ये शुरू हो गया कार्यक्रम आपका। जी सर, जिस दिन राज साहब ने बात कही उसी दिन राज साहब की बात करने के 1 घंटे के भीतर ही मांडगांव स्थित जो एक कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस था वो ऑफिस फूट चुका था। आज की ही मैं आपको अभी इवनिंग की अपडेट दे दूं कि जो 350 किलोमीटर का रोड है, वड़खड़ नाका जिसको हम लोग कहते हैं, पनवेल के आगे जो लगता है, वहां से लेके लांजा तक जो 350 किलोमीटर का रोड है, यही रोड सबसे ज्यादा खराब है। और इस रोड पे सर रोड तो नहीं बना लेकिन टोल लग चुका था। तो आज हमारे कुछ महाराष्ट्र सैनिकों ने वो टोल भी आज उसको तोड़ दिया है और सरकार को एक मैसेज दे दिया है कि अब तो सुधर जाओ और अब तो काम पे लग जाओ, नहीं तो हम तो रुकने वाले नहीं है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर सम्मान्य राज साहब के आदेश के अनुसार एक बहुत बड़ा कैंपेन मुंबई गोवा रोड पे हाथ में लिया जाएगा। उसकी जानकारी ऑफिशियली जब बाहर आएगी तब आपको पता ही चल जाएगा। एक बहुत ही अलग तरह का कैंपेन हम लोग इस बार करने वाले हैं और इस सरकार को जागना पड़ेगा ऐसा कुछ करने वाले। राज साहब ने चित्रा वाघ पे भी आलोचना किया, बोले कि अमित ठाकरे जी वहां से जा रहे थे तो वाघ जो बीजेपी के महिला अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि मनसे को यह भी समझना चाहिए कि टोल कैसे बनता है, टोल डेवलपमेंट में कितना काम लगता है, कितना हर चीज लगता है, कुछ बनाना सीखो। तो राज ठाकरे साहब ने उनका भी बरोबर किया कि आप भी अपना बीजेपी पार्टी, तो इस चीज को कैसे, राज साहब ने कहा कि बीजेपी पार्टी अब स्वयं उठाओ, जो बंदूक लेके कनपट्टी में लोगों को यहां से उधर डाल रहे हो, यू शुड डेवलप योर ओन पार्टी। उसको कैसे एमएनएस के हर कार्यकर्ता लिए है सर किदन जी? सर ये बहुत ही एक बात उनकी तरफ से की गई थी कि कुछ बनाना सीखो, तो हमने उनको पहले ही सोशल मीडिया पे याद दिला दिया था कि नासिक के जो रास्ते बने वो हमने ही बनाए थे, राज साहब ने ही बनाए थे। उन रास्तों को पत्रकारों को ढूंढना पड़ता था कि खड्डा कहाँ है, तो वो हमने बनाई हुई चीज थी, वो तो हम लोग ऑलरेडी उनको याद दिला चुके थे। लेकिन राज साहब ने उनको एक मैसेज इस तरह से दिया है कि कुछ बनाने के लिए जैसे आप लोग चुरा के अपने पास ला रहे हो, वैसे अपनी पार्टी भी बना लो। जैसे आपके सीनियर लीडर होके गए, हम जिनकी बहुत इज्जत करते, अटल बिहारी वाजपेयी जी होके गए, अडवाणी जी होके गए, उन्होंने सबने जीरो से ये पार्टी बनाई। और अब जहाँ पे इनके आयाराम दयाराम लोगों को जो लिया जा रहा है, तो राज साहब ने उनको कहा है कि भाई कुछ बना भी लो, अपना भी कुछ बनाओ, सभी बना बनाया लेके क्या करोगे। तो केतन नाइक जी, जहां तक के मुंबई गोवा हाईवे का प्रश्न है, उसमें अब आगे क्या, कल परसों तरसों क्या होने वाला है वहां पे? सर मुंबई गोवा के लिए एक बहुत ही तगड़ा कैंपेन हाथ में लिया जाएगा जी। एक बहुत ही बड़े लेवल पे जन जागृति की जाएगी और मुंबई गोवा का जो प्रश्न अभी राज साहब ने हाथ में लिया है,
तो जब तक जनता के हिसाब से उस चीज को हम लोग सॉल्व नहीं कर लेते, हम लोग शांत नहीं बैठने वाले। पिछले समय में राज साहब ने जितने भी कैंपेन महाराष्ट्र सैनिकों के हाथों में दिए, महाराष्ट्र सैनिक उस कैंपेन पे लगातार लगा हुआ है। उन्होंने कोई खंड पड़ने नहीं दिया है। जब जब जीत सामने आती है तब तब हम उस चीज पे उतरे हैं। मुंबई गोवा का भी उसी तरह से होगा। जब तक ये रोड बंद नहीं जाती हम शांत नहीं बैठेंगे सर। वो कैंपेन आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक चलते चलते वी नो यू आर इन हरी बिकॉज आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वहाँ पे आपकी गाड़ी शायद आपने कहा आपकी खराब हो गई है, तो आई होप योर कार गेट्स रिपेयर्ड वेरी वेरी क्विकली। सर ये जो मुंबई गोवा हाईवे है इसके ऊपर 15,556 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुका है, 15,556 करोड़। तो इसका हिसाब नहीं मांगना चाहिए? ये 15,500 करोड़ कहाँ गया यार? मतलब ये क्या है? अब हमने तो 600 के 650 करोड़ खर्चे हैं चंद्रयान पे, ये तो 15,500 करोड़, मतलब कुछ ज्यादा नहीं है? क्या लगता है आपको? सर आपने अगर देखा होगा तो राज साहब ने जब ये गणित जनता के सामने उस दिन रखा जी, तो उन्होंने एक और बात पे गौर किया है कि वो बात ऐसी है सर कि ये सिर्फ 15,000 का खर्चा हुए, ये मामला सिर्फ इतना नहीं है सर। इसके आगे चल के अगर हम देखेंगे तो ये पैसे खर्चे होने के बावजूद रोड क्यों नहीं बना? इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है, इसके पीछे किसी का पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है, कोकण की जगह जिस तरह से बेची जा रही है उसके पीछे किसी का एजेंडा तो नहीं है। तो इसके ऊपर भी राज साहब ने निर्देश किया हुआ है और ये चीज को सर डीप में जाके समझना भी बहुत जरूरी हो गया है। ये सिर्फ रोड ना बनने का मामला ना होके कोकण की भूमि को बर्बाद करने का तो मामला नहीं है, कोकण की अच्छी भूमि को कहीं कुछ और तरीके से डाइवर्ट करने का तो मामला नहीं है। इसके ऊपर सोचना सर, इसके ऊपर सोचने के लिए राज साहब ने इस बार कहा है। केतन जी, एक चीज राज साहब ने ऑलरेडी कहा कि अगर गडकरी मीन्स एमएनएस के बहुत सारे नेताओं के मन में ये सब है कि गडकरी जी ने बोला कि वी आर गोइंग टू एलिमिनेट पेट्रोल डीजल टोटल समाप्त करने वाले। गडकरी साहब कहना आई एम गोइंग टू एबॉलिश पेट्रोल डीजल मेरे कार्यकाल में, यानी आने 4-5 साल में उनका एम्बिशन है। तो कोंकण इज एमएनएस लुकिंग देख रहे हैं कि फर्टाइल लैंड है, एक प्रोग्रेसिव लैंड है, टूरिज्म के लिए एक जबरदस्त अट्रैक्शन है। तो वहां पर रिफाइनरी, अगर पेट्रोल डीजल ही खत्म आप कर रहे हो तो रिफाइनरी, तो ये आप बहुत सारे मनसे के टॉप लीडर्स का ये कहना है कि वाई, ये एम्बिगस स्टेटमेंट है। गडकरी जी बोलते निकालो और आप सरकार बोलते हैं कि रिफाइनरी कोंकण में रखे और पूरे प्रदूषण फैलाओ। हाउ डू द एमएनएस लीडर्स लुक एट इट? केतन जी सर हमारी ब्लूप्रिंट में इसके बारे में साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोकण का विकास होना है तो उस जगह की जो वैल्यू है सर, उस जगह की जो देवभूमि हम जिसको कहते हैं, वो जिस तरह से डेवलप होनी चाहिए उस तरह से उसका विकास करना जरूरी है। वो होने के बजाय अगर कोई प्रकल्प वहां पे लाए भी जा रहे तो उस प्रकल्प का महत्व लोगों को पहले समझाना होगा, उस प्रकल्प से क्या निकल के आने वाला है वो समझाना होगा। रोजगार तो मिलेगा, लेकिन रोजगार के साथ साथ वहां के इको सेंसिटिव जोन्स पे, वहां की इकोलॉजी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, उसके बारे में भी सरकार को बात करनी पड़ेगी। तो जो ब्लूप्रिंट में मुद्दे रखे गए थे सर वो इसी तरह से थे, वो बैलेंस, एक उसका जो विकास था वो पूरी तरह से बैलेंस था। तो अगर ऐसा बैलेंस विकास का कोई प्रपोजल सामने आता है तो उसको विरोध बिल्कुल नहीं किया जाएगा सर। राज साहब तो प्रोग्रेसिव थिंकिंग के ही देता है। तो जो इशारा अभी राज ठाकरे साहब ने अभी दिया कोंकण की भूमि को लेकर के, कि कहीं ये प्रयत्न तो नहीं है कि कोंकण को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए ताकि उसको हैंडओवर कर दिया जाए किसी को? इशारा किसकी तरफ है सब समझ गए हैं, तो इसका विरोध होगा अच्छी तरीके से? सर बिल्कुल विरोध होगा। अगर राज साहब ने बात कही है तो महाराष्ट्र सैनिक चुप नहीं बैठेगा। महाराष्ट्र सैनिक और राज साहब का एक नाता ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें राज साहब ना बोल के भी महाराष्ट्र सैनिक समझ जाता है। तो अगर इस बारे में विरोध का समय आएगा तो आप देखोगे कि विरोध तो तगड़ा होगा। केतन जी, आदित्य ठाकरे जी भी ये टोल नाकास का इश्यूज उठाना शुरू कर दिया है। बीच में उन्होंने कहा कि ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे टोल ना की जरूरत नहीं है, डबल टैक्सेशन हो रहा है, मुंबई के लोग टोल भी भर रहे हैं और रोड टैक्स भी भर रहे हैं, बीएमसी भी पैसे ले रहे हैं, बीएमसी भी रोड नहीं बना रहे हैं, टोल वाले भी रोड। तो आदित्य ठाकरे जी का कैंपेन के बारे में एमएनएस कैसे देखता है सर? केतन जी सर मराठी में कहावत है, उशिरा आलेला शहाणपण। मतलब वो जब सत्ता में थे, जब महानगर पालिका की चाबी इनके पास थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की चाबी थी, तब तो इनको ये नहीं लगा कि टोल बंद होने चाहिए थे। टोल का मुद्दा, टोल बंद करेंगे ये कह के ये लोग सत्ता में आए और जैसे सत्ता में आए टोल की बात भूल गए। आज सत्ता से 4 दिन क्या बाहर बैठना पड़ा, वापस इनको टोल याद आ गया। तो सभी कुछ राज साहब से अगर सीखना है तो पार्टी में ही आ जाओ, बाहर क्यों बैठे हो जी? लेकिन अगर आना चाहेंगे क्या आप स्वागत करेंगे उनका? वो राज साहब का निर्णय है सर।
केतन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you so much. Thank you so much, very sir. much. Thank you so much. Always a Thank pleasure talking to you. Thank you very much. And really sad to hear about BEST. I hope BEST में आपकी नहीं, sir, कैंपेन कोई जारी बड़ी बात रहेगी. BEST में आपकी कैंपेन जारी रहेगी मैं उम्मीद करता हूँ. Thank you sir. जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, 100%. नमस्कार. Thank you so much, sir. वंदे मातरम, वंदे मातरम. वंदे मातरम, जय हिंद. Jai Hind. But that was sad, right? What happened to the BEST workers, Pradeep ji? I mean, Very, very sad. Government that believes it is for the poor and downtrodden, that it is for the farmers, it is for the poor workmen, kashtakaraansa, garibansa, god garibansa, and then you are creating a discrimination in the same, among the same. आपने permanent drivers, contract drivers, permanent drivers double पगार, contract drivers half पगार, और कैसे? And that too they How are don't you going get to gel it. it? And that too they don't get it on time. That's the problem. और अभी क्या है कि दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, बोनस किसको कितना मिलेगा, क्या नहीं होगा. Again there is discrimination over there. Again resentment over there. सर एक चिंता का विषय ये है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनलिमिटेड फंड्स है. Unlimited funds where infrastructure is concerned. Yes. You got Mumbai, Maharashtra and the whole India in transformation mode. Prime Minister अभी उन्होंने विश्वकर्मा आज ही अनाउंस कर दिया कि विश्वकर्मा दिवस. Yes, विश्वकर्मा योजना. 57,000 crores. Yes, yes, yes. And individually for only for विश्वकर्मा 13,000 crores. Yes. तो ई-बस तो एक एक योजना तो अनाउंस कर रहे हैं, बट वहाँ implementation concerned where directly paying the salaries of the most poorest of poor is concerned. But Pradeep ji, what you mentioned just now is the most important thing. You said there are unlimited funds for infrastructure. Infrastructure does not mean only physical structures. BEST and their personnel are also part of that infrastructure. What are you going to do with that infrastructure if those poor bus drivers are not going to be paid? They are part of your infrastructure. If you're going to destroy BEST, that means you are destroying the already existing infrastructure in the city of Mumbai. When you're doing that, you're destroying Mumbai. That's what you're doing. No, I got what It you're is saying. terrible. You got world-class infrastructure, but the people who are moving their infrastructure, you want to keep them in the most, unhygienic or below the standard, working standards kind of living for them. Now you got the world-class infrastructure. The people moving their infrastructure should be world-class too. Yeah, absolutely. Their payment should be world-class too. Absolutely. Their standard of living should be high. That they feel All right, proud even of if it the is not- fact that they are part of the world-class infrastructure. Pradeep ji, even if it is not world class, at least there should be equality for the same job, same pay, same job, same job, same pay. I mean, come on. The guy who's a permanent employee of BEST is also driving the BEST bus. The chap who's a contractual worker is also driving the BEST bus. They're doing the same job. Now, same job, same pay. That's a basic principle. Now, if you're not even going to do that, if you're going to give him 50% of what a permanent guy gets, that is terrible. That is absolutely Sir, terrible. एक था कि what you're talking, the Prime Minister's objectives, Yes. upliftment of mankind, upliftment of the poorest of poor, raising the standard of living of the most poorest of poor. He quotes Gandhi that he wants a smile on the face of the most poorest of poor. Then if your entire focus is on the poorest of poor, how can you're pushing them into the same oasis of not even giving the basic standard of living. आप उसको और degenerate or degrade कर रहे हो. When you have a basic world, you're trying to have world, because his entire objective is that Mumbai, all the cities will be world class. Everything is world class. You got 14 metro lines. You know what? The Prime Minister is there. He will push for your funds. He will get the Planning Commission, that is the Niti Aayog, and the Finance Ministry to allocate funds for you. But ultimately, it all depends upon the state government, and it depends upon the municipalities to utilize those funds. The Prime Minister is not going to come and run your cities for you. The Prime Minister has given you a model to follow, a template to follow. If you don't follow it, it's not the Prime Minister's fault. I'm sorry. I'm speaking on behalf, I'm speaking in support of Mr. Modi. Fact remains, I don't think Mr. Modi is even aware of this, of what's happening, Pradeep ji, as far as the unfairness to best drivers and other people is concerned. This is terrible what is going on. At the end of the day, these people have to wake up to the fact that you are betraying the trust that the Prime Minister himself has placed on you. Let's be very clear. So we are seeing what we are seeing in Mumbai today is never seen before. You know, you got flyovers everywhere, you got
metro rails everywhere. You got this, sea link out there. You got the coastal coastal road. roads going on. That's there were right. Trans Harbour Link. Mumbai, Maharashtra is fully up for development, and these all, let me tell you, creating world-class facilities in the seas, in the oceans, underground tunnels. No, when you are having such a budget for that, for these kind of things, the people Why who are should going, you- yes, why should you Why deprive did the you most? deprive people of with a budget which is not going to cost you anything? Yeah, nothing at all. In fact, the That is entire being- system Pradeep itself ji- is going to pay for it. Pradeep ji, that's being petty. More than anything else, I think that's being petty. There is some bureaucrat over there who has decided that, hey, these people don't deserve to get it. And that's it. And that's exactly what has happened. It's absolutely terrible. वो क्या बोलते हैं सर, एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है, वो ब्यूरोक्रेट जो होते हैं कहीं कहीं वो ऐसे ही होते हैं. He's got a vision. Mr. Modi has a vision. The state, I think. But everybody has to internationally come on pay for board. it. Pradeep ji, that vision, Yes, that yes. vision will work only if everybody gets on board. That's it. Otherwise, we'll have these kind of things going on all the time. Look at the Mumbai-Goa highway. Isn't that terrible? I mean, look at the state. Look at the state of that. You look at that footage. It's so terrible. You spend 15,556 crores on that. You ought to be ashamed of yourself. People are dying. Vehicles are getting, Yes, vehicles are getting destroyed. Destroyed. और आप जो है ये बोल रहे हैं कि आपने 15,500 करोड़ की हाईवे बना दी और वो हाईवे में है क्या, जरा देखिए ना जाके. Sir, endlessly we have been talking on this contract system of the road contractors and all. Abhi tak, it's a pity we don't have a solution. We don't have a for solution. Central solution, national solution, and state-wise solution, and BMC corporative. A municipality municipal. solution. You don't have a solution at all. It is just milking, making money and forgetting about it. रोड खराब है तो उसको कैसे? और जैसा राज ठाकरे की एमएनएस बोलती है कि पॉट होल से पैसा बनता है साहब, ये गड्ढों से आपकी जेबें भरती हैं, सीधी सादी बात है. It's like what we saw at the Mithi River. The Mithi River is a cash cow. Every year you clean the Mithi River, you make God knows how many crores, and you will keep cleaning it. But the Mithi River will never get cleaned. So is the case with the potholes. Those potholes will never get filled. They will never be all right. And even if they are filled, within a couple of days, they'll be back to where they were again. Otherwise, how are you going to make money? That's it. Now, somebody has to get up and put an end to that. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आज के शो में सिर्फ इतना ही. चलते चलते, I think we've got a few comments that we have to take. Let's take a look. आप भी अपने comments भेजते रहें. We'd like to, I would certainly like to read as many as possible. This is about Farhan Akhtar. Ranveer, Don nahi, dog. Oh God, this is terrible. Asif Sheikh Saab, this is being very unfair. No SRK, no Don. Mr. Ajay Makwana. Wow. You know, SRK himself insisted that Ranveer He Singh should should be, be, yes, yes. should But I be on think the he road of is. Don. Shame on NCV if this happens, if Mr. Sharad Pawar actually joins the BJP. That's what they say. Well, Mr. Sharad Pawar is wiser than us, older than us, has been around for a far longer time than us, and has been in politics for a very long, long time. Perhaps I think he's the senior most politician. And he's putting up a fight. He's putting I up a can't fight. fight at his age. Look at his energy and look at the way he's going. जो defectors है उनके पार्टी के, उन्हीं के पार्टी, the people who have betrayed him that he believes, he's going right into the arena and holding meetings, holding public rallies right in their bastion. Now that is a challenge. That is a challenge. Now let's see Now, and how the other side retaliates. The way he, when talking to the media, he says, "You want to know about my energy? You want to have a fight with me? You want to wrestle with me?" I mean, that's the way he's showing that he is a Pehlwan, and then I can take on you at my age even now. And the way things are, I don't think it's going to be so easy for Ajit Pawar. शरद पवार 17% वोट शेयर जो शरद पवार जी का है, वो शरद पवार जी इतने आसानी से देने वाला नहीं है. शरद पवार जी जाग चुके हैं. आपने उनको इतनी उंगली करी, इतनी चूंटियां मारी उनको, इतना उनको तंग किया कि उनको अब जगा दिया है. अब झेलिए, सीधी सादी बात है. ना उत्तर सभा घेणार, उत्तर रैली लेंगे and asking the founder member, why don't you retire? तुम्ही take retirement like how the BJP leaders have taken.
मार्गदर्शन पैनल में now you are going to now I don't does think Sharad Pawar is going to Ajit take very Pawar kindly. have the rank and file? ठीक है, अब leaders तो चले गए. And when you ask, as we discussed earlier in the show, the press, the media asked Mr. Sharad Pawar ji, how many MLAs you've got? He said, Shunya, 0. I don't need MLAs. I don't have an MLAs. That's the confidence and the courage. He knows how to raise the entire tower again. Absolutely. And Mr. Ajit Dada Pawar is going to have a very, very difficult time. Let me tell you that. It's going to be really and truly difficult even to win his own seat at Baramati. Do remember, that's not his seat. That is Sharad Pawar's seat. But it will be very interesting. Whoever wins, great times for all journalists. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, आप सब्सक्रिप्शन बटन के ऊपर आप क्लिक करें और डू कीप सेंडिंग इन योर कमेंट्स. कमेंट जरूर भेजें. दैट्स इट फ्रॉम प्रदीप जी एंड माई सेल्फ. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.